Soumya, please start the session. Soumya, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Hi, Saurabh Chandra here. Good afternoon, sir. I welcome you to the online FDP program Thank on you. research method. So let's start with the program as it is already time. So now good afternoon to all the participants as well as to the session of this session will chair. To address this session on writing a research proposal, I would like to invite Dr. Saurabh Chandra, Sir, Associate Professor, Indian Institute of Management, Indore. He has completed his FPM from IIM Lucknow. His research contributions are mainly in the field of maritime logistics. He has not only an academic experience but also industry experience as marine engineering and as chief engineer. His core strengths are strategic and tactical analysis of planning and scheduling problems in logistics using programming and simulations. His teachings and research interests mainly include operation management, supply chain management, operation research, service operation management, and business statistics. With this short intro, I welcome you, sir, to this FDP and request you to further proceed with the session. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Thank you. Thank you. So can I share a PPT here? Yeah, sir, you can. Okay, so thanks for the introduction, and I would like to talk somewhat more about me. So thanks for giving me this opportunity of talking about writing research proposal, because more than discussing with you, it's more of a learning experience for me actually, because a research proposal is something which I have been writing. Everyone writes from the time he appears for a. Let me know when if I'm not audible or there is something wrong, right? Yeah, sure, sir. I will. Okay. So I've been writing research proposals from the time I did my FPM, and as you can see, I started my career as a marine engineer in Merchant Navy. So academics was a very unknown kind of field for me. I had absolutely no idea that there is a PhD in management in IIMs. So I knew about the CAT exam, but I have no idea about PhD in management, which is called FPM in IIM system. So when I was doing my sailing, of course, I was pissed off. It's a difficult job, pays well, but Merchant Navy is not a good job. I won't say it's a good job, but I personally kind of missed the social life and other things which are not there in that job. So I was looking for some change, and although my father is a professor, he's a professor at Ranchi University. So, but he did not talk to me much, so I didn't had much idea about this line anyway. So I gave this CAT exam in 2007. Got a call from FPM, which is a doctoral program. Then I came to know about this thing, and I just entered lacklusterly. So I was not really very keen on doing a PhD or anything. So as opposed to you guys who are really focused on academics, and you are really into doctoral research and all that, but I was not so much into that. So I was more or less someone who is an outsider. So then I got into this FPM program, and we had this 2-year coursework, which was basically the MBA course, you can say. The first year was common with the MBA classes, so I had to compete with the people who have got 99 percentile in CAT. So it was really tough. And then I think from the second year onwards, we
we had courses on uh, doctoral research. Then we actually, from 2010 onwards, I got introduced to doctoral research and had many methodology courses. And then from the third year of my FM program, I had to write a research proposal, and that was the first time. So what is a research proposal? How do we write that? And what is the basic audience there? And so yeah, so that's the overall idea of this presentation. So I was given the topic, but I was not really sure what to talk about on this, because writing a research proposal could, I mean, I can finish the presentation in 10 minutes. I mean, if I ideally give you time to do this, 10-15 minutes is good enough for this presentation actually. But given this includes 1.5 hours, so I need to go in detail. So what is a research proposal? Let's see. Okay, one more thing. As you can see, I am from operations management and quantitative techniques area in management. So in management discipline, we have 4 areas broadly, 4 or 5. So one is obviously finance and accounting, which is probably closer to the department which I am talking, which is conducting this. Another area is marketing, which is a large area. And so basically marketing is one of the key areas of management, because most students get placed in marketing and sales roles here. Then we have operations management area, and we have human resources area also. So marketing and human resources are more towards social sciences, so that the research they do, the courses they conduct are very closer to courses like psychology, sociology, organizational behavior, and sorry. And finance is very similar to commerce. So finance is basically a hybrid of not evolved from economics, and it has components of corporate finance. It has ingredients of economics, ingredients of accounting. So it's a mixed area which deals with money as it is managed in organizations. So that's the idea of finance. And finally, we have this operations management area, which deals with so I can say that operations management area basically deals with how things work. So finance talks about how to manage money. Human resources area talks about how to manage people, their emotions, their team, their leadership, and all those things. Marketing deals with how to deal with customers, how to develop new products, how to advertise, how to generate ideas which make customers happy, and blah, blah, blah. On the other hand, operations management is very close to engineering actually. So by that I mean, so we talk about how to run machines better, how to organize work, how to arrange people for a certain work, how to do some kind of planning in transportation management. And so basically very hard stuff which deals with day-to-day activities of running an organization. So that's why it is called operations management. And there is a additional area in management which is called quantitative techniques. So in IIM Indore, we have both the areas combined, operations management and quantitative. So quantitative techniques is basically the area of mathematics and statistics, which is applied in the management area for different problems. So I'll call it QT in short. So QT has applications in marketing, finance, HR, OM, every area. So it's not specific to OM, but somehow it has got, it's the same area in IIM Indore and in many other institutes actually. So quantitative techniques deals with discussions on statistics, on operations research. These are the two broad areas in which QT deals with. So incidentally, I am although from operations management background. So both my work experience as a marine engineer, so I was a part of international logistics industry. So I'm more of a supply chain management professional in that sense. And yeah, but yeah, so I also teach quantitative techniques courses. So I'm good in statistics, operations, all those things also I teach and do research on. And coming back to my research area, so broadly it is the application of operations research, which is basically a very hardcore mathematical tool to solve real life problems. Some of the famous techniques are linear programming, mixed integer programming, non-linear programming. So these are mathematical techniques where you formulate a business problem or any engineering problem, business problem, anything in a mathematical model, and then you solve using a software by special techniques. So it's a very rigorous area and I do research on that.
Apart from that, I also have twisted with finance area actually. So I know a little bit of econometrics. I know a little bit of accounting also. So fortunately, since my PhD program at IIM Lucknow, we had to do 1 year coursework with with the regular MBA batch. So I've done courses on accounting and finance, basic courses. I'm not thorough in like applications of finance and accounting, but yeah, I know little basics. So I know how to see a balance sheet and all that. So those things I know a little bit. So one area of my research is deals with application. So interface between finance and operations. So although operations is a very hard discipline and deals with how to manage things and people to run better, to make things fast, to make things cheap. But yeah, I mean the application of, so where does finance and operations meet? So the idea is that whatever you do in operations has some objective. So either you do it to make more money, which is profit maximization, or you do it to reduce cost. Now, when would you like to reduce cost? So let's say you're working for a government organization like railways, where profit maximization is not really the objective. So main objective is to reduce the cost of operations. And obviously that's a very obvious link between operations and finance. But another link is, so sometimes we want to analyze the financial ratios to understand how our operations is doing. So one of the very famous variables is inventory turnover ratio. So since some of you belong to commerce and finance area, you may be knowing that your balance sheet has an inventory calculation. So it comes within the current assets. So inventory is basically the total stock of all the materials in your company. So that is valued in rupees or dollars, and that's what inventory is. So one of the measures in operations management which is derived from finance is inventory turnover ratio. So if you use this inventory number from your balance sheet into your operations, so it basically gives you a proxy of how much material do you keep in your company on an average. And that is a measure of operational productivity, because we understand that keeping too much inventory to sell something is not very good. So ऐसा जनरल अंडरस्टैंडिंग है. अगर आप देखोगे, जैसे आप सिंपल सिंपल शॉप्स में जाते हो, आप देखोगे कुछ दुकान बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखते हैं, एकदम पूरा दुकान भरा रहता है सामान से. आप खरीदने जाते हो, देखते हो एकदम मतलब खड़े रहने का जगह नहीं दुकान के अंदर में, और दुकानदार बेचारा कहीं पे घुस के बैठा है. और कुछ दुकान होंगे वहां बहुत लीनियर होता है, ऐसे खास करके आप अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसोगे तो बहुत ही नीटली अरेंज्ड होता है हर चीज, और जितना जरूरत हो उतना ही रखा रहता है एक टाइम में. सो मैनेजमेंट लिटरेचर बहुत टाइम से मानता है इस बात को कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखना इज नॉट गुड फॉर ऑपरेशंस, बिकॉज उसमें वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है. तो अगर आप मान लिया आप सिंपल पेट्रोल बेचते हो, आपके पास पेट्रोल पंप, तो अगर आप दिन में 100 लीटर बेचते हो, तो 100 लीटर बेचने के लिए आपको 10,000 लीटर का इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है. सो जैसे बेसिकली हमने रिसेंटली पेट्रोल पंप के लिए छोटा सा कंसल्टिंग किया, हमने बेसिकली उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह के लिए छोटा सा मॉडल बनाया. तो they kept a huge amount of inventory to sell a very small amount of petrol, actually, which is not required. I mean, basically, to maintain 10,000 liters of petrol in a tank, कितना रुपया लॉक्ड है उनका. अगर if अगर वो 60 रुपीज में 1 लीटर खरीद रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि हर दिन उनका 60,000 रुपीज तो केवल इन्वेंट्री में लॉक्ड है. सो व्हाई टू कीप सो मच इन्वेंट्री टू मेक अ सेल ऑफ 100 लीटर. सो बेसिकली हम उनको बताया भाई आप आधा ही टैंक भरो ना, आपको पूरा टैंक हमेशा भर के रखने क्या जरूरत है. तो देन दे रिड्यूस देयर इन्वेंटरी. एंड आई मीन इफ यू आर सेविंग 60,000 or finance, or for that matter someone working in humanities area, but the overall structure of research is very similar, and that's what makes this talk very universal. So regardless of which area you are in, so deliberately मैंने बहुत ज़्यादा examples use नहीं किए हैं अपने area से, because some of you may not appreciate it. So I'm sticking to mostly the content of how to make a research proposal in general context. So any subject area हो,
फर्क नहीं पड़ता. And so let's start with this. So basically, what is a research proposal? Now someone might ask you, what is this, what is all this fuss about detailed proposal for my study before I even begin? So obviously जब मैंने अपना research proposal 2010 में दिया और मेरा फाइनल थीसिस खत्म हुआ 2013 में, सो 3 साल के बीच में, और सच पूछो तो मुझे आज भी नहीं पता कि मैंने क्या किया अपने थीसिस में. इट्स अ जोक बट प्रीटी मच ट्रू एक्चुअली. सो आज भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि जो जो मैंने चीजें की हैं वो सही है कि नहीं, और was it the best way to go? And obviously it was not the best way, because after my 3 years of coursework I have improved a lot. I mean उस समय मैंने 10 गलतियां की थी, और वहां से निकल के 6-8 साल हो गए, तो अभी मुझे ज्यादा पता है कि मैं क्या कर सकता था. सो स्पेशली जब मैं रिसर्च स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अभी तो काफी पढ़ के आइडिया लग भी गया, बट व्हेन आई स्टार्टेड आफ्टर बेसिकली 2 साल के कोर्स का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होता है, और उसमें दे आस्क द सेम स्टफ व्हिच दे हैव टीचिंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स. उसमें भी कुछ ऐसा रिसर्च का बहुत नहीं पूछते हैं लोग. सो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देने के बाद में देन यू स्टार्ट डूइंग योर प्रॉपर रिसर्च. सो 6 months to 1 year के टाइम में दे एक्सपेक्ट यू टू डेवलप अ रिसर्च एरिया which basically comprises of literature review, rigorous literature review. So being in IIM, एक एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं. सो कोई भी रिसर्च पेपर आपको एल्सेवियर, स्प्रिंगर और किसी का भी चाहिए आपके पास है, मतलब लाइब्रेरी रिसोर्सेज में आपको मिल ही जाएगा. वो नहीं भी होगा तो दे विल अरेंज विद इन अ कपल ऑफ डेज. आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, भले वो 5 लाख का आता हो, दे विल अरेंज इट. सो दोज थिंग्स आर देयर. सो बीइंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट गिव्स अस दोज काइंड ऑफ बेनिफिट्स. बट हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि मेरे गाइड इतना ज्यादा बिजी रहते हैं अपने काम में कि ही नेवर हैड एनी टाइम फॉर मी. सो दैट वाज अनदर फ्लिप साइड ऑफ being in IIM. So you're basically, the professors are too busy to do anything. So I can see myself. So not only teaching is there, consulting है, research पे बहुत ज़्यादा pressure है. So actually maybe around 5 to 10 years ago research पे इतना pressure नहीं था. I mean basically if I say my case, मैं जब PhD करके निकला तो मेरे पास एक भी research paper नहीं था, and I still got into IIM Indore, which is like the top 6 institutes in India in management. बट आज के डेट में मैं खुद हायर नहीं करूंगा किसी को अनलेस उसके पास में एक टॉप पब्लिकेशन ना हो. एंड द स्टैंडर्ड्स हैव रियली इंक्रीज्ड, एंड दैट्स द नीड ऑफ द डे एक्चुअली, बिकॉज हो क्या रहा है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है. आई मीन एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने एक NIRF रैंकिंग निकाला है, और उसका मेन क्राइटेरिया है रिसर्च. बिकॉज आई मीन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड है, but unfortunately we lack in research. I mean even if you're doing a lot, अगर आप कंपेयर करो यूएस से, यूरोप से, चाइना से, तो हम लोग बहुत पीछे हैं रिसर्च के मामले में. सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, और नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ही एक्चुअली मैटर नहीं करता है. आई मीन आपको पता होगा कि देयर आर सो मेनी, मतलब बेकार जर्नल्स भी हैं. आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जर्नल्स एंड वी डोंट नो, आई मीन दे आर नॉट सो गुड एक्चुअली. सो आप उसमें पब्लिश कर सकते हो, कुछ पैसे लेके पब्लिश करते हैं. So there are really low quality journals where you can publish, but then उसका कोई value नहीं है. So I am इंदौर वगैरह में हमारे यहाँ 2-3 इंटरनेशनल रैंकिंग फॉलो करते हैं. एक है उसमें से ABDC लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन लिस्ट है. You may have a look. I mean it's easily available online. Just type ABDC journal ranking, ABDC Australian Business Deans Council. So जो लोग फाइनेंस कॉमर्स एरिया में काम करते हैं उनको they might use it. So you will come to know कि कौन से अच्छे जर्नल्स हैं हमारे एरिया में. और दूसरा है एसोसिएशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स इन यूरोप. सो यूके का लिस्ट है, ABS बोलते हैं इसको. और गूगल, और ऑब्वियसली फिर शिमागो है. सो शिमागो में भी आप देख सकते हो कि अगर आप शिमागो टाइप करो गूगल में, तो यू कैन सी कि अगर आप किसी जर्नल का नाम डालोगे या एरिया का नाम डाले, से अकाउंटिंग डालोगे, तो आपको बता देगा कि कौन कौन से जर्नल्स Q1 में है. सो Q1 इज द टॉप कैटेगरी जर्नल्स. सो अगर आपका जर्नल ABDC में है, ABS में है या शिमागो में है, तो वो वर्ल्ड क्लास है. मतलब अगर आप 3-4 अच्छे पब्लिकेशन इन सब में निकाल पाओ, तो यू कैन एक्चुअली, इट्स गुड एक्चुअली. सो देन यू कैन एक्चुअली से दैट यू आर competing internationally. Otherwise just publishing anywhere does not make any sense, which is unfortunately the case in India, because many people are publishing here and there, which is not useful, because आपका पेपर कोई पढ़ेगा भी नहीं उसके बाद में. सो कोई मतलब नहीं होता उसका. सो ये है. So coming back to my discussion, so basically the lady is asking from her supervisor कि क्या करने का अभी, मतलब
अभी मेरे को 3 साल के बाद भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को 3 साल के पहले क्या ही पता होगा कि मुझे क्या करना है। हार्डली डन। सो 1 साल के टाइम में यू रिगरसली रिसर्च पेपर। सो एक चीज था कि बीइंग फ्रॉम मरीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा ये आइडिया था कि मेरे को शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर कुछ करना है, ये था मेरा फिक्स। तो उससे थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं जो भी रिसर्च पेपर ढूंढूंगा वो शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए। Fortunately, there are so many journals which specifically deal with transportation. So there is a whole series of journals on transportation which deal with transportation issues. तो ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च सीरीज बोलते हैं, उस पे ए से लेकर के ई तक, ए एफ तक जर्नल्स हैं उसमें। उसमें फाइनेंस के भी पेपर आते हैं। रिसेंटली हमारे एक आया है ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च में, विच इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस इन ट्रांसपोर्टेशन एरिया। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट सो गुड इन दैट एरिया, सो मैंने कोलैबोरेट किया है यहाँ के अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेसर्स के साथ में। यू कैन हैव अ लुक इन माय लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, आपको दिख जाएगा वो। दूसरा है, हाँ तो 1 साल तक मैंने अच्छे से पढ़ा लिटरेचर, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, बुक्स। और दूसरा था कि मेरा मेथडोलॉजी फिक्स था कि मेरे को ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है, बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग। So then I basically look for papers which discuss mathematical modeling with transportation and shipping in particular. और धीरे धीरे करते करते पहले मैंने 100-200 पेपर पढ़े, फिर नैरो डाउन टू 10 पेपर्स कि हाँ भाई इसी 10 पेपर के आसपास मुझे काम करना है, ये 10 पेपर मेरा बेस है। और फिर वो 10 पेपर में से एक पेपर पे आया मैं, ऑलमोस्ट 8-9 महीने बीत गए थे तब तक, और बोला कि अब इसी पेपर को मैं डेल्टा लगाऊंगा। इस डेल्टा लगाने का मतलब कि रिसर्च में आपको कोई नोबेल प्राइज हर कोई जीत नहीं रहा कि एकदम से नया नैश इक्विलिब्रियम बना दिया नोबेल, वैसा तो होता नहीं हर। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि इन अ सर्कल ऑफ दिस थिंग, if let's say if you represent the entire knowledge in your area in a circle, so आप हल्का सा डेंट देते हो उस सर्कल में, एक छोटा सा डेंट निकालते हो उस सर्कल में, और यू एक्सटेंड द रिसर्च बाय अ स्मॉल डेल्टा। आई मीन हम्बली स्पीकिंग, इतना ज्यादा काम होता है पूरे दुनिया में हर एरिया में कि आप बहुत ज्यादा मैसिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप वो सोच के निकले हो तो अगर आप जॉन नैश की तरह जीनियस हो तो कर लोगे, लेकिन फिर पागल भी हो जाओगे जॉन नैश की तरह। दूसरा फ्लिप साइड है उसका। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरल लोग क्या होता है कि हम लोग एकदम मैसिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, बट वी हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, पिछले बंदे ने ये किया है इतना काम, मैं इससे थोड़ा और करूंगा, और दैट इज गुड इनफ। आई मीन दैट स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए बात, और थीसिस एडवाइजरी कमिटी को भी ये बात बताना चाहिए कि भाई क्या हो सकता है इस टाइमलाइन में। बिकॉज पीएचडी इज नॉट द एंड ऑफ योर रिसर्च कैरियर, राइट? आई मीन दैट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर, और आप पीएचडी में सीखते हो कि रिसर्च कैसे करना है। सो दैट द होल आइडिया। सो यू क्रिएट अ स्मॉल डेल्टा। सो ये लड़की पूछती है भाई क्या करूंगी मैं, मतलब अभी मुझे क्या पता रिसर्च क्या करना है। ऑब्वियसली जब मैं एक्चुअली रिसर्च करना स्टार्ट करूंगी तो मेरा तो काम बहुत चेंज हो जाएगा 3 साल में। लेकिन research proposal is very much a plan of what you are going to do. So she is saying that's true. Changes are inevitable. Change hoga, zarur hoga. But a little thought now will save you a lot of grief later on. So अगर आपका plan clear नहीं कि आपको किस रास्ते पे चलना है, तो you will be in a big problem. So आप अगर आप 10 एरिया लेके चल रहे हो कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, और काफी वेग है आपका और काफी ब्रॉड है अगर आपका प्रपोजल, so you will be in big trouble because you will end up nowhere. I mean that's a truth, or I have seen this happening with many people, and I was seeing, so I mean पहली बार मुझे लाइफ में कोई पीएचडी स्टूडेंट मिला है यहाँ पे, so she was also doing the same thing. She was doing too many things in the same time, so gradually I had to shut her up and say ठीक है ये करो अब बस, stop here, because there is no end to, I mean इट इज माइंड बॉगलिंग। अगर आप 100 पेपर पढ़ोगे 100 आइडिया आएगा, पागल हो जाओगे आप करना क्या। सो या प्रपोजल से यू हैव टू ले अ ग्राउंड वर्क कि भाई मेरा प्लान क्या है। इट्स वेरी मच लाइक अगर आप एक कंपनी खोलते हो, रेस्टोरेंट खोलते हो, सो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट खोलने के पहले आपका एक प्लान होगा कि भाई मैं ये मेनू आइटम रखूंगा, मेरा टारगेट कस्टमर हाई एंड एला कार्ट कस्टमर होगा जो कि आके स्पेशलाइज मेनू ऑर्डर करेगा, या तो मैं एक चलती रेस्टोरेंट खोलूंगा जहां पे कि ऑफिस वाले आकर के 50 रुपए का मील खाएंगे। सो मेरे को कुछ प्लान करना होगा कि मैं स्नैक्स का खोलूंगा जहां पे कि लोग समोसा कचौड़ी खा करके अपना टाइम पास करेंगे। सो आई हैव टू थिंक कि भाई मेरा टारगेट कस्टमर क्या होगा, मैं क्या क्या मेनू आइटम रखूंगा, मेनू आइटम के लिए मेरे को मेनू कैसे डेवलप करना होगा। सो
ऑब्वियसली आप एक बार रेस्टोरेंट खोलोगे तो उसमें चेंज आएगा, लेकिन you have to stick to your plan. So that's the whole idea of a proposal. So there will be changes later on, but you need to give a certain plan ki bhai, okay, this is what I'm going to do for the next 2 or 3 years. Now, दो reasons से हम research proposal बनाते हैं. One is starting point of a PhD thesis approval. So proposal is a legal document which makes a student ki bhai, this is the area of research. उस पर थीसिस एडवाइजरी हमारे यहाँ थीसिस एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं. सो जनरली होता क्या है कि एक थीसिस टैग चेयर होता है जो कि मेन, यू कैन से, इज द मेन गाइड ऑफ द स्टूडेंट, और बाकी 2 या 3 मेंबर होते हैं उस कमेटी के. सो बेसिकली हाउ डू वी मेक द मेंबर? सो होता क्या है कि लेट्स से इंटरेस्टिंगली मेरी जो स्टूडेंट है वो प्राइमरली अकाउंटिंग और ऑपरेशंस के इंटरफेस पे ही काम कर रही है. सो शी हैज लर्नड अ लॉट ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग इन लास्ट 1.5 or 2 years. फाइनेंस पढ़ना पड़, बिकॉज फर्स्ट 2 years में उसने उतना फाइनेंस वगैरह नहीं पढ़ा था. सो शी हैज पिक्ड अप अ लॉट. सो बेसिकली हमारा कुछ वैसा ही काम है. सो बेसिकली 2 भी मेरे टैग मेंबर हैं. दे आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया एक्चुअली. सो एक हमारा टैग मेंबर है वो अकाउंटिंग के हैं. सो ही नोज अ गुड डील अबाउट इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग एंड अकाउंटिंग. एक मेंबर हमारे ऑपरेशंस एरिया से हैं, हु इज वेरी गुड इन ऑपरेशंस रिसर्च मॉडलिंग. सो दिस इज हाउ वी मेक अ टैग. सो बेसिकली आइडिया ये है कि, बट जनरली होता क्या है कि लोग अपने दोस्तों को बनाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट अप्रोच. बिकॉज अगर आप थीसिस एडवाइजरी कमिटी में हो तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स थीसिस. सो अगर उसको कोई दिक्कत हो तो बेचारा किसके पास जाएगा? कल को इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में फंसे तो भाई ही कैन गो टू दैट गाइड ना. आई मीन बिकॉज योर थीसिस एडवाइजरी कमिटी हैज अ स्टेक इन यू. सो हमारे यहाँ पॉइंट मिलता है मतलब थीसिस एडवाइजरी कमिटी में होने का. सो बेसिकली दे हैव सम स्टेक. फिर कल को कोई रिसर्च पेपर लिखेगी तो वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट. सो दीज आर द थिंग्स हाउ वी मॉडिफाई दैट. सो या, सो वी शुड हैव सम स्टेक इन हर वर्क. सो वी मेक श्योर कि भाई टैग मेंबर शुड बी एक्सपर्ट इन सम डोमेन इन विच ही और शी इज वर्किंग. सो दैट्स द आइडिया. सो एक ये यूज है रिसर्च. दूसरा यूज है कि टू अप्लाई फॉर अ रिसर्च ग्रांट. सो वैसे यूनिवर्सिटी सिस्टम में ग्रांट्स आर मच मोर कॉमन. IIM में not so much somehow. I mean maybe it's true with me और लोग करते होंगे, बट इतना इजी नहीं होता मिलना. सो बिकॉज मैनेजमेंट ऐसा एरिया है कि मोस्टली वी टॉक अबाउट कंपनी प्रॉफिट्स. So it's not very easy to win a DST grant or something. Department of Science and Technology, so they have very huge grants if you're working in some hardcore science area. So अच्छा खासा लाखों लाख का grant देते हैं वो लोग. And there are so many other grant bodies which provide you scholarship for doing a research. So उस केस में भी proper proposal लिख के देना पड़ता है. Structure थोड़ा अलग होता है उसका. It is supposed to be much more concise. ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पेज का होना चाहिए और बहुत इजीली, मतलब इट शुड नॉट बी, में थोड़ा सा अलग होता है उसका स्ट्रक्चर आपके रिसर्च ग्रांट के प्रपोजल का. उसमें बजटिंग डिटेल्स बहुत डिटेल में देना पड़ता है. टाइमलाइन बहुत अच्छे से बताना पड़ता है, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट इन योर पीएचडी थीसिस. पीएचडी थीसिस में प्रॉब्लम, थ्योरी, मेथोडोलॉजी पे ज्यादा फोकस रहता है और ग्रांट वाले में बजट, इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च ऑडियंस, ये सब पे ज्यादा फोकस रहता है. सो थोड़ा बट हाँ, मोर और लेस द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर. So these are the two main things. I mean, but yeah, I have applied for research grants and I am in Indore. So in-house हमारे यहाँ पे seed money projects होता है. So they give you a very small amount of 1 lakh, which is nothing. I mean, सर्वे भरवाने में ही 1.5 लाख खर्च हो जाता है 200 आदमी का. So it's very small amount, but yeah, I mean, ठीक है, थोड़ा तो है. So yeah, I mean, maybe I have taken 2-3 projects from here last 2-3 साल में मैंने 3-4 प्रोजेक्ट लिया है यहाँ से. सो ये है, दिस इज द यूज ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल. नाउ व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल? सो द इशू, व्हाट प्रॉब्लम डज योर रिसर्च एड्रेस? सो एज आई सेड कि मैंने जब स्टार्ट किया अपना रिसर्च स्टेज इन माय 3rd year ऑफ माय एफपीएम प्रोग्राम, व्हिच इज द पीएचडी प्रोग्राम एट IIM. सो पहले मैं पूरे शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर जितना लोगों ने भी ऑपरेशंस रिसर्च लगाया था सारे पेपर पढ़ा. सारे नहीं, बट जितने अच्छे अच्छे मिले सब पढ़ा. सो एक ब्रॉड आइडिया में लगे, ठीक है भाई ये करना बेसिकली. ओके, लेट मी नो व्हाट माय प्रॉब्लम. सो मेरा प्रॉब्लम ये था कि
Okay, I hope you understand. It's not very difficult. So एक प्रॉब्लम शिपिंग इंडस्ट्री में ये होता है कि लेट से आपके पास एक शिपिंग कंपनी है और आपके पास में 100 जहाज हैं. सो आपका शिपिंग कंपनी जापान बेस्ड है. ओके, लेट्स कीप इट बॉम्बे बेस्ड है. और आपका ट्रेडिंग जो करना है वो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है, जापान के साथ है, चाइना के साथ है, यूएस के साथ है. सो ये लोग क्या करते हैं कि शिप्स को बेसिकली मेरे को अगले महीने पता है कि ये कार्गो मेरे को पिकअप करना है. सो मेरे को इंडिया से 100 टन या लेट्स से कंटेनर होता आजकल, कंटेनर कैरी करना है तो मेरे को इंडिया से 3000 कंटेनर पिकअप करना है और उसको अफ्रीका में छोड़ना है. अफ्रीका से 300 कंटेनर पिकअप करना है, उसको चाइना में छोड़ना है. चाइना से 5000 कंटेनर पिकअप करके उसको यूएस भेजना है. तो किसी भी कंपनी के पास में एक ऐसा कार्गो का प्लान आ जाता है. तो उनको बेसिकली प्लान करना होता है कि शिप्स को कैसे भेजा जाए. आप शिप को बॉम्बे से निकाल के सिंगापुर भेज सकते हो, सिंगापुर से फिर जापान भेज सकते हो, जापान से फिर अफ्रीका भेज दो, अफ्रीका से चाइना भेज दो. तो ऑब्वियसली आपको इस तरह शिप्स को भेजना है, मतलब इसको राउटिंग बोलते हैं, कि आपको मिनिमम कॉस्ट आए ट्रांसपोर्टेशन का और आपके साथ तब कोई भी कार्गो आपका छूटे ना. और ऑब्वियसली सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए कि भाई अगर ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए कि कोई भी कार्गो कम ज्यादा ना हो जाए, कोई छोड़ना ना पड़े. तो ये आइडिया रहता है ओवरऑल. सो लोगों ने उसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ था. 100 से ऊपर पेपर थे और काफी रिगरस मॉडल्स लगाए हुए. सो फिर उसमें पर्टिकुलर टाइप के शिप्स होते हैं जो कि फिक्स्ड रूट पे काम करते हैं. कुछ शिप्स कहीं भी जाते हैं टैक्सी की तरह कार्गो पिकअप करने के लिए. सो मेरा मॉडल थोड़ा उसको हाइब्रिडाइज करने का. तो मैंने देखा कि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो फिक्स्ड रूट पे काम करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो कहीं भी टैक्सी की तरह जाती हैं. सो कुछ कंपनीज का क्या होता है कि ऑल्दो दे फॉलो फिक्स्ड रूट बट देन दे आल्सो गो फॉर कार्गो व्हिच इज ऑप्शनल. तो मैंने सोचा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करके आई कैन कंबाइन दीज टू प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज अ मैथमेटिकल मॉडल व्हिच सॉल्व्स दीज टू प्रॉब्लम्स टुगेदर. सो ये आइडिया था मेरा. तो फिर ऐसे करके एक इशू तक मैं पहुंचा. सो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम ये रिसर्च एड्रेस करता है. सो एज फार एज पॉसिबल, तो या तो आपका प्रॉब्लम, सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज ट्रू विद मैनेजमेंट एरिया. हमारे प्रॉब्लम ज्यादातर रियल बिजनेस प्रॉब्लम से डील करते हैं. सो हम लोग का रियल लाइफ मोटिवेशन रहता है कि भाई ठीक है ये कंपनी ये करती है, सो ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम आ सकता है. ऑब्वियसली रिसर्च आइडिया तो पेपर पढ़ के ही आता है, रिसर्च पेपर. बट हाँ, आई मीन यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द रियल बिजनेस प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं कि आई हैव फ्रेंड्स विद टू मेनी इंडस्ट्री गाइस. सो हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो. तो वी कीप ऑन टॉकिंग टू दिस पीपल which is advisable actually. So if you're working in commerce area, do talk to people who work in commerce. कई बार होता क्या है कि हम लोग प्रोफेसर लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख के अपने आप को विद्वान समझने लगे. हमको लगता है कि हमें ही सब पता था, सामने वाले को कुछ नहीं आता. सो विच इज नॉट ट्रू एक्चुअली. एक्चुअली असली नॉलेज लाई करती है किताबों के बाहर, अगर आप सच पूछो तो. और किताब बने कहाँ से है, बाहर से ही तो किताब बना है ना. मतलब ऐसा तो नहीं किताब पहले काम बाद में, पहले काम फिर किताब आया है. धीरे धीरे करके काम डेवलप होता गया, कॉमर्स डेवलप हुआ, रेगुलेशंस बने, रूल्स बने अकाउंटिंग के. उसके बाद करते करते फिर टैक्सेशन के रूल्स आए, तब जाके बुक्स बने ना. सो एंड इंसिडेंटली रियल वर्क इज ऑलवेज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बुक्स. आई मीन नॉट डिफरेंट एज सच, आई मीन दैट वुड बी रॉन्ग टू से, बट इट्स ऑलवेज कुछ डिफरेंस होता है बिकॉज रियल वर्क इज एवर इवॉल्विंग. आज जो रियल काम कंपनी में हो सकता है कि 5 साल 10 साल के बाद बुक्स में आए वो, या 100 साल के बाद भी आ सकता है. सो एज अ प्रोफेसर वी शुड ऑलवेज सी कि दुनिया क्या कर रही है. मतलब जिस भी एरिया में हो आप, अगर आप साइकोलॉजी में काम करते हो तो बहुत आसान है, फिर तो आपके घर में ही 50 केस स्टडी मिल जाएगा आपको. अगर आप सोशियोलॉजी में हो तो यू ऑलवेज कैन सी कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं. सो सोशल साइंस वालों के लिए थोड़ा इजी है बिकॉज वो लोग हमेशा अपने सब्जेक्ट्स के टच में रहते हैं. नॉट सो इजी फॉर पीपल लाइक अस बिकॉज हमें थोड़ा जाके खदानना पड़ता है कि दुनिया में चल क्या रहा है. सो दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप कोर्स पढ़ाते हो अपने कॉलेज में, तो आप ऐसे लोगों को इनवाइट करो जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कहीं पे, और वो लोग अच्छा लगता है एक्चुअली. इनको दे लाइक टू शेयर देयर नॉलेज. आई मीन ऑफ कोर्स IIM में हमारे पास फंड अच्छा रहता है तो हम थोड़ा पैसा भी देते हैं ठीक ठाक आने का, मतलब पर सेशन 10,000 के आसपास दे देते हैं. But that's never a motivation for people coming here, I can tell you.
सो आप जैसे किसी भी ठीक ठाक कंपनी के किसी मैनेजर को बुला के टॉक दिलवा लो, एक क्लास लिवा लो उनसे कि भाई क्या हो रहा है इंडस्ट्री में. So they like to share their knowledge actually, and that's what motivates them. So आप ऐसे लोगों को बुलाओ, स्टूडेंट्स का शेयर करो, या उनको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट दिलवा सकते हो जहाँ पे कि वो जाके बात करें. So there are several ways. So basically the whole idea is to develop connect between real life and academics, which is very important and massively lacking in India. हमारे इंडिया में हम लोग प्रोफेसर लोग अपने आइवरी टावर में बैठे रहते हैं और हमें कोई मतलब ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है. So which is not good actually. और यहाँ पे आप देखोगे कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज आर वे एडवांस्ड, उनका बहुत अच्छा कनेक्ट रहता है और जितना भी रिसर्च पेपर वो लिखते हैं सारा इंडस्ट्री प्रॉब्लम से आता है. सो ऐसा कुछ भी वो लोग हवा में नहीं उठाते. ऑफ कोर्स व्हेन आई से दैट ऑब्वियसली देयर आर मेनी डिसिप्लिन्स वेयर देयर इज ग्राउंड रिसर्च, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरेटिकल डेवलपमेंट से भी कभी कभी नया नया इनोवेशन आता है. सो हमेशा जरूरी नहीं कि इंडस्ट्री से ही रिसर्च हो, कभी कभी प्योर एकेडमिक रिसर्च भी होता है और होना चाहिए भी. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि उससे रिसर्च अच्छा नहीं है या उसका महत्व कम है, बहुत ज्यादा महत्व है उसका भी. बट दोनों अप्रोच है. अगर आप हाईली थ्योरेटिकल हो, आपका अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, इफ यू लाइक गो विथ इट, बट स्टिल इट वुड मेक सेंस टू ब्रिंग अ कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू टीच एंड व्हाट यू डू एंड व्हाट अदर्स डू. सो ये ध्यान रखना होगा. सो यहाँ से इशू आता है बेसिकली. सो रियल लाइफ इज अ बिग मोटिवेटर ऑफ रिसर्च इशू. तो ये पहला इंग्रेडिएंट हो गया. दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया रिसर्च डिजाइन. कि रिसर्च डिजाइन इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक. इसमें इतना चीज आता है कि यही सीखने में पूरा उम्र निकल जाता है आदमी का. सो अभी मेरे को 3 साल का पीएचडी का टाइम हो गया, उसके बाद 2013 से लेकर के 2007 साल हो गए. आज भी मैं सीख ही रहा हूँ. आई मीन एंड आई एम सर्टेनली नॉट अ ग्रेट रिसर्चर इन माय एरिया और इन माय इंस्टीट्यूट. इवन आई एम इंदौर में मेरे से 20 लोग बहुत अच्छे होंगे, बट आई एम डूइंग रीजनेबली ओके. आई मीन ऑलरेडी मेरे पास 3-4 अच्छे पेपर्स हैं टॉप लेवल. आई मीन आईएम ऐसा होता है कि हम लोगों को ज्यादा पेपर छापने नहीं बोला जाता, लेकिन आप 2 ही छापो एक साल में, एक ही छापो एक साल में, लेकिन काफी टॉप जर्नल में होना चाहिए, विच इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. बिकॉज अभी मैं कोई भी पेपर जब पहली बार सबमिट करता हूँ तो ज्यादातर तो डेस्क रिजेक्ट हो जाता है. वो एडिटर देख के ही उड़ा देता है उसको. जब वो जाता भी है रिवीजन में तो 2 लोग ब्लाइंड रिव्यू करते हैं और 1 साल टाइम ले लेते हैं उसमें. फिर वो रिवीजन के बाद आता है कि उसमें भी कई बार उड़ा देते हैं रिजेक्ट. कई बार किस्मत बहुत अच्छी रही तो मेजर रिवीजन आता है, उसमें वो लोग दुनिया जहान का काम देते हैं, ये कर दो वो कर दो, ये डेटा लाओ ये डेटा लाओ. तो उसके बाद हमें 1 साल टाइम लगता है उसको करने में, फिर हम बेचते हैं तो मरते जीते. तो 2 से 2.5 साल लग जाता है एक पेपर निकालने में, और उसके बाद भी पता नहीं होता कि कब वो रिजेक्ट मार देंगे. लेकिन हाँ, एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज आपका दुनिया भर में लोग आपको जानने लग जाते हैं. बिकॉज आई मीन दीज पेपर्स आर रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सभी मैंने जो शिपिंग इंडस्ट्री पे पेपर्स लिखे हैं, आई मीन अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल ही हुआ 1-2 को, बट स्टिल साइटेशंस बढ़ रहे हैं. आई एम गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस से, न्यूजीलैंड से. तो अच्छा लगता है चलो आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज गेटिंग इंटरनेशनल अट्रैक्शन. सो अच्छा चीज लगता है. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट आजकल चीज क्या है कि रिसर्च हैज बिकम द ब्रेड विनर ऑफ एकेडमिक्स. जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एकेडमिया फोकस करता है अगर वर्ल्ड रैंकिंग्स पे, तो रिसर्च पे ही सबसे ज्यादा फोकस आने वाला है. बिकॉज रिसर्च इज द प्राइम कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडस्ट्री रैंकिंग, सॉरी एकेडमिक रैंकिंग. टीचिंग वगैरह कोई नहीं देखता. आई मीन नॉट टू से दैट टीचिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज so I'll tell you how teaching affects my research. So basically जब मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ, so मेरा बेसिक फंडा बहुत क्लियर हो जाता है. so जैसे मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ या ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाता हूँ या इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद बहुत ज्यादा सीखता हूँ. ऑब्वियसली क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो थोड़ा बेसिक लेवल होता है, और रिसर्च में जो करता हूँ थोड़ा सा हाई लेवल होता है. लेकिन तो भी अगर आपका बेसिक लेवल ही नहीं क्लियर होगा तो रिसर्च क्या ही करोगे आप. सो टीचिंग से मेरा फंडास बहुत ज्यादा क्लियर होता है. सो दैट हेल्प्स मी ट्रेमेंडसली इन रिसर्च. सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारा कोर्स डेवलप करता हूँ विच इज वेरी क्लोज टू माय रिसर्च एरिया. जैसे मैंने अभी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पे कोर्स डेवलप किया. फिर आई टॉक अबाउट ट्रकिंग कैसे चलता है, शिप्स कैसे काम करते हैं, ट्रेन कैसे चलता है. मतलब कैसे चलता है मतलब नॉट द इंजीनियरिंग पार्ट, बट कैसे उसे कार्गो शिप होता है, कैसे प्लानिंग करते हैं, तो ये सब चीज डिस्कस करते हैं. सो I always try to develop courses which lead me to read about my area.
ऐसे क्या है कि एकेडमिक्स में आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, मतलब अब IIM इंदौर में 100 प्रोफेसर हैं, एक डायरेक्टर है, एंड डायरेक्टर ही साहब मेरे बॉस हैं बस, और किसी को जवाबदेही नहीं है मेरा। तो मेरे को बेसिकली कोई नहीं पूछने वाला कि तुम क्या कर रहे हो रोज डेली बेसिस पे। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। अगर मैं लैक्स मार दूं तो मैं 5 साल काट दूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, और भगवान के दया से मेरे को नौकरी से भी कोई नहीं निकालेगा। परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, सो प्रीटी स्टेबल। बट आई डोंट वांट दैट फीलिंग टू क्रीप एनी टाइम। मेरे को हमेशा अपने टोज पे रहना है, बिकॉज आई मीन फिर लाइफ का मतलब क्या, अगर आप प्रोफेसर बने हो तो यू आर सपोज्ड टू डू रिसर्च, सो आई वांट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। So yeah, so research design is something which takes maximum amount of your time, और 10 साल बिताने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं आता है, बिकॉज द सी ऑफ नॉलेज इज इनॉर्मस, मतलब लिमिट ही नहीं है उसका। सो या दैट्स ट्रू। बट या हैविंग सेड दैट, डरने की बात भी नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली जो लोग स्टूडेंट सुन रहे होंगे वो लगेगा क्या बोले जा रहा है, इतना ये तो हो ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि अगर आप 1 साल भी ईमानदारी से किसी मेथोडोलॉजी पे टाइम दो तो you will learn enough to try good papers in that area. So 1 साल is good enough to start with. Obviously becoming an expert is another thing. So अब जैसे कि मैं क्लास 12 में IIT का कोचिंग करता था रांची में, मैथ्स के कोचिंग पढ़ाते थे, रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो P नारायण, शायद आप लोग किसी ने नाम सुना होगा, जीनियस। आई मीन उस समय तो मुझे रिसर्च का ABD CBD भी नहीं पता था, पता भी नहीं था रिसर्च क्या होता है, PhD में क्या करते हैं लोग, बट उस समय वो बात करते थे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का, एंड ही वाज रियली गुड। आई मीन नाउ आई कैन रियलाइज। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, वो इतना हाई लेवल पढ़ाते थे कि मेरे कुछ समझ में नहीं आता था, तो ही वाज प्रीटी मच यूजलेस फ्रॉम IIT पॉइंट ऑफ व्यू। बट आई स्टिल गेट इंस्पायर्ड बाय हिम कि सिटिंग इन रांची यूनिवर्सिटी विदाउट एनी एक्स्ट्रा, जैसे IIM इंदौर में हम लोग रिसर्च करते तो हमें उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जस्ट टू प्रमोट रिसर्च, और अच्छा खासा पैसा मिलता है एक्चुअली। यू कांट इमेजिन। आई मीन ऐसे अभी हमारे कैटेगरी ABDC में स्टार पब्लिकेशन टॉप कैटेगरी पेपर्स को माना जाता है, तो अगर मैं एक A स्टार पेपर निकालूं तो मेरे को 10 लाख रुपए मिलता है उसका। ऑब्वियसली दैट गेट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑथर्स हियर, तो अगर 3 ऑथर हैं तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। बट बात यह है कि जस्ट टू मोटिवेट गुड रिसर्च, और होल पॉइंट इज टू इम्प्रूव रैंकिंग्स, बिकॉज ऐसे आप रिसर्च करने बोलोगे तो रिसर्च इतना डिफिकल्ट और इतना फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है कि आधे लोग करेंगे ही नहीं, जो कि नहीं भी करते, पैसा मिलने के बाद भी नहीं करते लोग। तो बट या आई मीन बट आई डोंट बिलीव कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, सीरियसली स्पीकिंग। कल को पैसा ये लोग नहीं भी देंगे तो मैं करूंगा, बिकॉज दैट एक्साइट्स मी। सो द आइडिया इज दैट कि सो P नारायण, आई जस्ट स्टिल रिमेंबर हिज एंथुसियाज्म, हाई लेवल मैथमेटिक्स, उस समय नंबर थ्योरी पर रिसर्च करते थे और उनके इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आते थे, क्वाइट इंस्पायरिंग एक्चुअली। सो pursuit of knowledge is itself a big motivator, so उसके लिए you don't need to get money or something, so that's the biggest thing। and obviously आज के डेट में कैरियर, एकेडमिक कैरियर के लिए बिगेस्ट टूल इज रिसर्च। आप कहीं बाहर अप्लाई करोगे जॉब के लिए, इंडिया में या इंडिया से बाहर, आपने क्या किया पहले कोई नहीं पूछेगा। आपने आसाम से PhD किया है कि बोध गया से किया है कि IIM से किया, नो वन, किसी को मतलब नहीं उससे। आपके पास अगर 4 अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो यू आर गुड टू गो एनीवेयर। So that's what research helps you in current times. So yeah, okay, so final thing is benefit. So ठीक है, आपने बता दिया ये मैं प्रॉब्लम पे काम करूंगा, ये मेरा रिसर्च डिजाइन है, मैं ब्ला ब्ला मेथोडोलॉजी लगाऊंगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है, ये वो। so what? So ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि प्रपोजल प्रेजेंटेशन में कुछ लोग पूछ देते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत काफिलाना होता है। मतलब आप अगर आधे 1 घंटे आपने अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया, आप 1 साल से उस पे 1-2 साल से लगे पड़े हो, आप अगर दिन रात जाग रहे हो उसके लिए, और पूरा आपने प्रेजेंटेशन दिलो जान से दिया, लास्ट में बाहर से जो आएगा गाइड वो पूछ देगा कि सो व्हाट, और वो इतना खतरनाक क्वेश्चन होता है कि मतलब बाण की तरह भेद देता है आपको अंदर तक बिल्कुल, और दैट्स टेरिबल। सो बट सी, तो लास्ट में आपका प्रेजेंटेशन में ये 2-4 चीज तो होना ही चाहिए कि क्यों मैं कर रहा हूँ, इससे दुनिया को क्या फायदा है, कॉमर्स डिसिप्लिन को क्या मिलेगा ऐसा करके। सो आइडिया ये है। सो ये बताना बहुत जरूरी है रिसर्च में। ओके, वन मोर थिंग आई शुड टेल यू, ये जितना भी प्रेजेंटेशन मैंने बनाया मेरा नहीं है, ये मैंने बहुत सारे PPTs को मिला के बनाया है। सो it's not mine. I mean, I don't want to use the word, but it's a highly plagiarized presentation, so to say.
I mean, it's not a crime because मैं इसको publish नहीं कर रहा. I mean, so don't blame me for that. But yeah, I mean, so you can see this figure is from MIT Open Courseware. So yeah, so it is from different sources, not my presentation as such. But yeah, बोल किसी के हूँ लेकिन विचार मेरे ही हैं. So you can be assured of that. So research proposals make you outline steps in your proposed research. So ठीक है, मैं पहले थोड़ा broad start करूंगा, फिर धीरे धीरे करके मैं exact details में घुसूंगा. और बहुत सारा रिपीटेशन भी है इस प्रेजेंटेशन में. सो अगर टाइम कम बचा तो मैं थोड़ा स्किप भी कर सकता हूँ. सो डोंट वरी अबाउट दैट. I'll share the presentation with you, but don't publish it anywhere because ये मेरा नहीं. सो मैं अपना नाम भी नहीं डालूंगा इसमें. It's a mix of मैं इतना आलसी हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मेट भी चेंज नहीं किया है. So, yeah, so don't publish it anywhere with my name or your name in it. So just keep it for your reference and that's it. So ये भी I think MIT वाले ही वेबसाइट से है. So इसके बारे में बात करूंगा. प्लेगियरिज्म बहुत मेजर इशू है. लोगों का कैरियर बर्बाद हुआ उसके चक्कर में. और तो yeah, so that will come a bit later in my presentation. So yeah, so क्या क्या purposes. So first is outline steps in your proposed research. Provide yourself with intellectual context. So exactly क्या context में आप काम कर रहे हो, आपका दायरा क्या है, आपका domain क्या है आपके काम का. You have to be creative here. And that's what keeps me excited actually. So अगर आप as a academic में सिर्फ प्रोफेसर होके पढ़ाते चले जाओ तो बहुत बोरिंग हो जाता है लाइफ. अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करो तो थोड़ा सा मजा आता है. मतलब so it's something like being an artist. So you are creating a new research problem from blue moon, I mean blue sky. So आप किसी ने आज तक ऐसा नहीं सोचा. आपने थोड़ा सा ही सही but कुछ नया सोचा, उसके ऊपर कुछ किया, तो keeps me very motivated actually. Or even if it is very difficult, very boring, very frustrating, still the creativity part keeps it alive. So इसके चलते मजा आता है करने में. So that's the main thing. तो अगर आपका रिसर्च में क्रिएटिविटी नहीं है तो it's very difficult to push through. That you should keep in mind. अगर आप टॉप जर्नल्स में या टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर आप प्रपोजल दे रहे हो, अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा लोगों को मतलब अपने थीसिस को डिफेंड करना. चौथा चीज है जस्टिफाई योर रिसर्च. ऑब्वियसली दैट इंक्लूड्स बीइंग क्रिएटिव. क्यों कर रहे हो आप, ये समझाना बहुत जरूरी है. आपने जो मेथोडोलॉजी उसके वो स्टेट ऑफ द आर्ट है कि नहीं. आपका प्रॉब्लम है डेल्टा आपने क्या कवर किया है. डेल्टा मतलब एडिशनल आपने क्या फील्ड कवर किया है. उसके बाद थिंक थ्रू योर एक्सपेरिमेंट्स. नाउ नॉट एवरी रिसर्च कैन बी एक्सपेरिमेंट बेस्ड. सम कैन बी प्योरली मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस्ड. सम कैन बी प्योरली केस रिसर्च बेस्ड. सो रिगार्डलेस ऑफ दैट आपको अच्छे से अपने मेथोडोलॉजी के थ्रू सेल करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी रेडी विद प्रॉब्लम. जस्ट लाइक जैसे नासा जब मार्स पे रोवर भेजता है, जैसे अभी उसने परसिवरेंस रोवर भेजा है. सो रिगार्डलेस वो पिछले 3 साल से उस पे काम कर रहे हैं. सो बेसिकली नासा अपना रॉकेट रोवर भेजता है, डिजाइन करता है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में वो है. और उनका रॉकेट उड़ता है केप कार्निवल फ्लोरिडा से. तो बेसिकली व्हेन दे डिजाइन दिस रोवर, सो इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट नोन एट ऑल. इनको पता ही नहीं कि बीच में कैसा टेम्परेचर प्रेशर आएगा. पता है बट इट्स समथिंग व्हिच इज कॉल्ड नोन अननोन. तो इट्स अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिसर्च एक्चुअली. आई मीन ज्यादातर हम जो रिसर्च करते हैं दैट इज प्रीटी इजीली अवेलेबल. डेटा मिल जाता है, पता है क्या हो रहा है, वी कैन टॉक टू पीपल. बट व्हेन इसरो और नासा सेंड अ प्रोब टू समवेयर, इट्स कंप्लीटली नोन अननोन. सो इनको थ्योरेटिकली पता है कि स्पेस में वैक्यूम होगा, -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, मार्स पे जब एंट्री मारेगा तो भयानक गर्म होगा, 5,000 डिग्री पहुंच जाएगा. फिर वहां पे एयर प्रेशर नहीं जिससे कि पैराशूट खुल सके. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो बट ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, और उसके ऊपर में रिस्क असेसमेंट करके रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं. सो दैट्स व्हाट दिस थिंग वाज ऑल अबाउट. सो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, डेटा कलेक्शन में आएंगी, हो सकता है आपका मॉडल ना चले. आपने पता चला बहुत मेहनत करके फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट किया. हुआ है मेरे साथ में पहले, मेरी स्टूडेंट के साथ भी हो रहा है. बहुत मुश्किल से हम लोग कर रहे हैं उस काम को. सो बेसिकली तो मैं बता देता हूँ, मेरी जो पीएचडी स्टूडेंट है
उसका काम ये है कि अभी जैसे मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर बताया था आपको कि इन्वेंट्री टर्नओवर हम लोग फाइनेंशियल डेटा से लेते हैं कंपनी का, और इट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी ऑफ की हाउ गुड यू आर मैनेजिंग ऑन इन्वेंट्री। आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे तो आप एक्स्ट्रा पैसा डालोगे उसमें। जैसे मैंने बताया कि 100 लीटर तेल बेचने के लिए भाई साहब 10,000 लीटर तेल का एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, दिस इज बेकार है, मतलब कोई मतलब नहीं उसका। और बहुत कम इन्वेंट्री रखोगे, अब मान लीजिए 100 लीटर बेचने के लिए आप एग्जैक्टली 100 लीटर तेल रखो तो उससे भी नुकसान है ना आपका। हो सकता है किसी दिन ज्यादा बिक जाए, फिर तो आपका तेल ही खत्म, फिर तो आप बेच नहीं पाओगे, आप पोटेंशियल प्रॉफिट लूज कर जाओगे ना उसमें। तो आइडिया इसकी ठीक है, 100 लीटर बेचना है, 150, 200, 300 लीटर रख लो, चलो 500 रख लो, तो आपका क्या होगा, कभी शॉर्टफॉल नहीं होगा, और थोड़ा सा ज्यादा इन्वेंटरी रखिए, यू विल बी एबल टू मैनेज योर सेल्स वेल। सो अब इसके ऊपर में खूब रिसर्च होता है, दबा के पेपर छपता है भाई। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लोग उठा लेते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट से, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी ऑफ ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इंटायर कंपनी। आपका कंपनी 50 प्रोडक्ट बनाता हो, 1000 मटेरियल मैनेज करता हो, 4 फैक्ट्री हो, उसका दुनिया भर का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो रुपीस टर्म में बहुत अच्छे से बता देगा कि आप ओवरऑल इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो। सो वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, आई मीन दैट्स अ I mean beautiful link between operations and finance की just by looking at a accounting number आप खड़े खड़े बोल सकते हो, आप उस कंपनी में देखे भी नहीं हो जाकर के क्या होता है, आप बोल सकते हो तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेकार है, मतलब खड़े खड़े बोल सकते हो आप। ऑब्वियसली इट्स नॉट एज इजी एट इज साउंड, उसके और भी बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। तो एक बहुत ही कॉमन रिसर्च टॉपिक है, आई वोंट से कॉमन बट एक ऑपरेशंस और फाइनेंस के इंटरफेस में बहुत अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम है कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। सो ये लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर को या और भी बहुत सारे मेजर्स डेवलप किए, इन्वेंट्री अपॉन सेल्स, फिर आपका ऐसा हो सकता है इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज, फिर एक है इन्वेंट्री लीननेस रेशियो, वो निकालते हैं इकोनोमेट्रिक एनालिसिस करके डेटा का, सेल्स डेटा का। सो किसी भी एक इन्वेंट्री परफॉर्मेंस वेरिएबल को एक तरफ लेते हैं एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्रॉस मार्जिन हो सकता है, आपका एबिटा हो सकता है, आपका और भी कोई भी, आपका टॉबिन क्यू हो सकता है, स्टॉक प्राइस हो सकता है, रिटर्न ऑन सेल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरली सारा करके देखते हैं, 3-4 फेमस रिसर्च पेपर में देखते हैं कौन कौन सा मोस्टली यूज किया लोगों ने, और वो सब यूज करके हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली बहुत सारा पेपर ये देखता है कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस का आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। तो इसका इनकंक्लूसिव रिजल्ट है, बिकॉज अगर कंपनी बहुत कम इन्वेंट्री रखता तो भी घाटा होगा उसको, बहुत ज्यादा रखता है तो भी घाटा होगा। तो ज्यादातर रिजल्ट इनकंक्लूसिव था। किसी की रिसर्च में आया कि हाँ इम्पैक्ट होता है, किसी की, तो आप रिग्रेशन जानते होंगे शायद, आप लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में रिग्रेशन करते हैं, तो कई बार बहुत इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट भी आता है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, बीटा आपका इनसिग्निफिकेंट आ जाता है। तो फिर लेटेस्ट रिसर्च लोगों ने करके बताया कि यू शेप रिलेशन है, अगर आप एक सर्टेन रेंज में इन्वेंट्री रखोगे तो इट्स द बेस्ट, अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो भी घाटा लोगे, और अगर आप बहुत कम रखोगे तो भी खराब करोगे। सो ये इवेंचुअली लास्ट में जो कुछ बहुत ही टॉप जर्नल्स में कुछ पेपर, उसमें इस तरह का रिजल्ट आया। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि मे बी लीन इन्वेंट्री परफॉर्मेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, देयर इज अ मीडिएटर और मॉडरेटर इन बिटवीन। मॉडरेटर इज परफॉर्मेंस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी एक इकोनॉमिक्स टर्म है। सो बेसिकली मैनेजमेंट डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स एरिया का बहुत ज्यादा यूज है। इवन इफ आई वर्किंग ऑन मार्केटिंग, आई एम वर्किंग ऑन ऑपरेशंस, इकोनॉमिक्स एरिया का जबरदस्त एप्लीकेशन है। सो इन अ वे वी ऑल आर इकोनॉमिस्ट्स एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। सो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, और इसको भी हम लोग डेटा से ही निकालते हैं। सो आइडिया ये है कि इन्वेंट्री अच्छा मैनेज करने से रिसोर्स बेटर मैनेज होता है, उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। सो ये काम कर रही है वो। सो अब जैसे जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहा है, कभी कभी रिजल्ट इनकंक्लूसिव आ जाता है, डेटा नहीं मिलता, डेटा मिसिंग होता है, फिर कई बार सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आता है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, सो वी हैव अ सर्टेन प्लान फॉर दैट, वी मीट पीपल। सो इस तरह करके होता है। सो यस, यू हैव टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड मेक अ सर्टेन कंटिंजेंसी प्लान फॉर दैट, कि भाई ऐसा हुआ कि आपने मॉडलिंग किया, चला ही नहीं, फिर आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप किया किसी रिसर्च के ऊपर में, 5 हाइपोथेसिस बनाए,
उसके ऊपर आपने 6 महीना डेटा कलेक्ट किया, आपने उसके ऊपर रिग्रेशन मॉडल आर सीखा या स्टेटा सीखा। आर स्टेटा बेसिकली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, तो रिग्रेशन वगैरह चलाने के लिए यूज होता है। तो आपने आर स्टेटा सीखा 6 महीना लगा करके, फिर आपने मॉडल चला, कुछ रिजल्ट ही नहीं, आप क्या करोगे आप? तो कंटिजेंसी ये है, एक बहुत अच्छा अप्रोच ये है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब कि एक और एडिशनल रिसर्च एरिया रखो, आप पूरा अलग एरिया मत रखो, बट उसी एरिया में से एक एडिशनल प्रॉब्लम रखो कि अगर ये मेरा नहीं चला तो मैं ये करूंगा या करूंगी। सो कुछ एडिशनल एक होना चाहिए। सो बेसिकली हमारे यहाँ इंदौर में 3 चैप्टर का फंडा है, 3 अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए और तीनों रिलेटेड एरिया में होना चाहिए, बट समवॉट एक्सटेंशन होना चाहिए दूसरे का, कि भाई ठीक है एक में अगर बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आए तो एटलीस्ट यू हैव बैकअप ऑफ 2 प्रॉब्लम्स। सो जनरली इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू स्टार्ट विथ ओनली 1 प्रॉब्लम, सो उससे रिस्क हो सकता है। सो ये एक अच्छा अप्रोच है, अदरवाइज यू गो एज यू गो, जैसे भी होता है। एंड एंटीसिपेट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अगर मैं अपनी पीएचडी स्टूडेंट को इसी हालत में छोड़ दूं तो वो 15 साल यहीं बैठे रह जाएगी, बिकॉज उसको मैं 1 हफ्ते का काम देता हूँ, 2 महीने के बाद लौट के आती है। उसका पूरा अभी उसको सीखना है बेसिकली। वो एक छोटा चीज करने बोलूंगा, वो 1 हफ्ता बैठ के पढ़ेगी, तो वैसे नहीं होता है। सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ रियलिस्टिक टाइम टेबल कि भाई ठीक है 1 साल में के अंदर मेरे को ये करना है, 6 महीने में मेरे को लिटरेचर रिव्यू खत्म। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, इट मे वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। 6 महीने में मेरे को लिटरेचर रिव्यू खत्म करना है, 6 महीने में मेरे को मेथोडोलॉजी सीखना है, फिर मेरे को 3 महीने लगेगा गैप आइडेंटिफाई करने में। सो इस तरह का कुछ एक टाइमलाइन बनना चाहिए कि ठीक है भाई। और पीएचडी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आइडियली। अगर आप कोर्स वर्क कर रहे हो 1-1.5 साल का, 2 साल का, तो एडिशनली 2 से 3 साल एक्स्ट्रा। और अगर आप सीधा पीएचडी कर रहे हो बिना किसी कोर्स वर्क के तो 3 साल मैक्सिमम। इससे ज्यादा टाइम अगर आप दे रहे हो तो इट्स अ वेस्ट, बिकॉज आप कोई नोबेल प्राइज एज अ सीट जीतने वाले हो नहीं उसमें। सो यू हैव टू डू अ रियलिस्टिक वर्क, good work in a reasonable amount of time, because you are losing money, you are losing time, because PhD is just a start of training for research, not the end of it. So you should not waste too much time in that. So वो आपको एक रखना पड़ेगा। Okay. So now coming back to what is a research proposal, so is format and detailed statement of intent of the researcher. Researcher क्या चाहता है, presents and justifies a plan of action and shows the investigation plan. So ये आपका broad content है. Going deeper into that, so when you are making a proposal you are supposed to ask certain questions. So पहला question है what is the problem, why should be studied, क्या problem है उसको क्यों पढ़ने का है. So steps to be taken, selection and statement of the problem. ये पहला आपका स्टेज है proposal का, कि ये आपका broad statement आपके पास होना चाहिए और आप कैसे चुनोगे उसको. So what are elements of this step? Problem identification, problem prioritization. So as I said कि जब आप 100 पेपर अपने एरिया का पढ़ोगे तो आपको उसमें से पता चलेगा कि ठीक है भाई ये ब्रॉड एरिया मेरे को करना है, उसमें से ये प्रायोरिटाइज करना है मेरे को, ये 2-3 प्रॉब्लम स्पेसिफिकली, और उसको जस्टिफाई करना होगा भाई किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया. दैट्स द मेन जस्टिफिकेशन, आज तक किसी ने नहीं किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, और इसका ये इंपॉर्टेंस है. 2 चीज देखना होगा आपको कि एक तो लिटरेचर में गैप होना चाहिए और दूसरा वो दुनिया के लिए किसी काम का होना चाहिए. अगर किसी काम को नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं करने का. दूसरा चीज है व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो आप जो भी काम कर रहे हो आपको लगता होगा कि वो नया है, लेकिन वो होगा ही नहीं नया, बिकॉज दुनिया भर में लोगों के ऊपर रिसर्च का प्रेशर है, और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं कंसल्टिंग इंडस्ट्री भी रिसर्च करता है. और आप कुछ भी प्रॉब्लम उठा लो एरिया में, किसी भी एरिया में, उस पर दुनिया भर का काम हो ही रखा होगा पक्का. हो सकता है आपकी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम पे काम ना हुआ हो, लेकिन आपके ब्रॉडर प्रॉब्लम पे तो काम हुआ ही हुआ होगा. आप ये भूल जाओगे इस पर नहीं हुआ, तो अगर रिग्रेसली लिटरेचर ढूंढोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. अब तो क्वेश्चन है कि कहाँ ढूंढोगे. उसका आंसर ये है गूगल स्कॉलर बेस्ट ऑप्शन है, scholar.google.com. और दूसरा चीज ये है कि गूगल स्कॉलर में आपको बहुत कूड़ा रिसर्च भी मिलेगा जो कि बहुत ही यूजलेस है और किसी काम का नहीं है. और दैट्स नॉट अ गुड वे टू गो, बिकॉज अगर आप रद्दी पढ़ के स्टार्ट करोगे तो गार्बेज आउट होगा. अगर आप रद्दी पेपर्स पढ़ोगे अपने पीएचडी में तो आपका भी पेपर रद्दी ही निकलेगा फिर. सो उसके लिए जरूरी है कि आप जो भी पेपर पढ़ रहे हो मेक श्योर कि इट इज फ्रॉम अ गुड जर्नल.
वो कैसे पता चलेगा? पहला मेजर है नंबर ऑफ साइटेशंस, बट नॉट अ वेरी गुड मेजर, बिकॉज कई बार बकवास पेपर को भी अच्छे साइटेशन मिल जाते हैं जस्ट बाय द सेक ऑफ बीइंग देयर। अभी किसी अननोन आदमी ने गूगल स्कॉलर पे अपना प्रॉब्लम डाला, 5000 पेपर आ गए, जो मिला उसने उठा के पढ़ के साइट कर दिया। That may be completely useless. So, but yeah, that's one measure, but not the best measure. So, but हाँ, generally अगर उस पेपर का बहुत अच्छा, generally हर एक एरिया का एक सेमिनल पेपर, एक दो पेपर होते हैं जो कि उस एरिया को स्टार्ट करते हैं। सो हम जिस पेपर एरिया में काम करें, इन्वेंट्री टर्नओवर वाला, तो हमारे एरिया का टॉप जर्नल है मैनेजमेंट साइंस, इन्फॉर्म्स का जर्नल है, यूएस का एक बॉडी उसका जर्नल है, वेरी डिफिकल्ट। इस जर्नल में पेपर छापने में 6 साल लग जाता है, और इंडिया में बहुत कम लोगों का मैनेजमेंट साइंस में आता है। आई थिंक आई एम बेंगलोर में एक प्रोफेसर है, उनका आता है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम है, ओके, एनीवे सॉरी। सो आई एम बेंगलोर में एक दो प्रोफेसर्स का आता है, और मेरे ख्याल से किसी का नहीं आता उस जर्नल में। वेरी डिफिकल्ट जर्नल टू पब्लिश, 6 साल लगता है एक पेपर को पब्लिश करने में, उसमें एंड टू एंड वेरी डिफिकल्ट। तो मैनेजमेंट साइंस का 2005 का एक पेपर था, इंडियन ऑथर नहीं लिखा है, बट नॉट बेस्ड इन इंडिया। सो वो एक जॉर्जिया टेक में वहाँ के शेलर स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर है विशाल गौड़, उनसे मैं मिला हूँ लास्ट ईयर, हमारे सोसाइटी ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में आए थे वो, आई एम कोझिकोड में, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। सो वो उस एरिया का सेमिनल पेपर, उन्होंने पहला पेपर लिखा जिसने कि इन्वेंट्री टर्नओवर को एज अ वेरिएबल कंसिडर किया, और उसके ऊपर उन लोगों ने बहुत अच्छा पेपर बनाया। सो बहुत रिगरसली, methodologically very rigorous, problem is very irrelevant, तो बहुत अच्छा पेपर है वो, one of my favorite papers of all times। तो आप किसी भी एरिया में काम करो, एक दो सेमिनल पेपर होते हैं which are like the, you can say the father of that particular area, so वो आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। तो वो तो गूगल स्कॉलर में किसी उस जनरली उन सब पेपर्स का 10-12 हजार साइटेशन भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो पेपर 10-20 साल पहले छपा है तो उसमें हर किसी ने उसको साइट किया होगा, तो इस तरह उनका बहुत सारा साइटेशन हो जाता है। सो जनरली इस टाइप के पेपर्स का बहुत साइटेशन होता है, बट डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम कितना जेनरिक है। अगर वो बहुत जेनरिक है तो 10-12 हजार साइटेशन भी हो सकता है। अगर आप किसी बहुत नैरो एरिया में काम कर रहे हो, तो जैसे शिपिंग एरिया में आपको 10,000 साइटेशन नहीं मिलेगा, शिपिंग एरिया नैरो फील्ड है, दुनिया में बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते, तो फिर भी 500-600 साइटेशन मिल जाता है अच्छे अच्छे पेपर्स का, तो वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा बहुत अच्छा सोर्स है लिटरेचर रिव्यू पेपर्स। सो जब कोई एरिया बहुत मैच्योर हो जाता है अपने रिसर्च में, जैसे मेरा एरिया था शिप राउटिंग एंड मैनेजमेंट, तो शिप राउटिंग मैनेजमेंट में 3 रिव्यू पेपर छप चुके हैं, और तो यहाँ तो ये बेसिकली सेमिनल पेपर्स और गुड लिटरेचर रिव्यूज आपको ढूंढना पड़ेगा पहले, तो ये है। नाउ दूसरी तो एक हो गया साइटेशन। नाउ हाउ डू यू नो कि वो अच्छा जर्नल है कि नहीं? सो आप सीधा जो शिमागो के वेबसाइट में जस्ट टाइप करो गूगल पे SCHIMAGO, तो शिमागो का वेबसाइट खुलेगा, और शिमागो में आप किसी भी एरिया में देखोगे तो उसमें, और उस जस्ट जर्नल का नाम टाइप कर दो आप। अगर वो जर्नल शिमागो में नहीं है तो मोस्ट लाइकली वो बहुत अच्छा जर्नल नहीं है। आई एम सेइंग मोस्ट लाइकली बिकॉज कई बार हो सकता है उसमें ना हो तो भी अच्छा जर्नल हो, बट हाँ अगर वो शिमागो में है तो अच्छा ही जर्नल होगा वो। उसका रैंकिंग भले लो हो सकता है, बट रैंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दो चीजें हैं। एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेडेटरी जर्नल नहीं होना चाहिए। प्रेडेटरी जर्नल ऐसे जर्नल होते हैं जो कि पैसा लेके पेपर छापते हैं, तो उनसे आपको बचना है। उसमें छाप दोगे तो आपका सीवी खराब हो जाता है। और दूसरा चीज ये है कि वो पीयर रिव्यूड होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि पीयर रिव्यूड नहीं है तो फिर वो मतलब स्क्रूटनी ही नहीं हुआ उस पेपर का। ऑल्दो पीयर रिव्यू इज अ पेन इन द एस, मतलब पीयर रिव्यू प्रोसेस को झेलना मतलब नाइटमेयर है रिसर्चर्स के लिए, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज कोई भी पीयर रिव्यूअर हो सकता है दैट में स्क्रू अप योर पेपर कंप्लीटली। बट पीयर रिव्यू इज ऑल्सो द टूल टू मेक श्योर दैट कि आपका पेपर अच्छा है, बिकॉज पीयर रिव्यू प्रोसेस जनरली डबल ब्लाइंड होता है, और ना रिव्यूअर्स को पता होता है कि हम किसका पेपर रिव्यू करें, ना आपको पता चलेगा आप किससे करवा रहे हो। तो काफी फेयर प्रोसेस होता है, फेयर इन द सेंस कि उसमें नेपोटिज्म का कोई चांस नहीं होता, तो जनरली रिगरसली ही होता है वो, तो आपका जैसा तैसा काम नहीं जाएगा उससे। सो अगर जर्नल लोअर रैंकिंग भी है, अगर पीयर रिव्यू प्रोसेस है तो इट्स ओके, नॉट बैड।
सो अगर आपका जर्नल शिकागो में लिस्टेड है, और शिकागो में दुनिया के सारे एरिया के पेपर्स हैं, सो नोट डो, तो अगर आप साइंस में काम करते हो, कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, किसी भी एरिया में, तो मिलेगा आपको उसमें जर्नल। सो ये 2-3 चीज आप ध्यान रख सकते हो लिटरेचर रिव्यू के लिए। सो पहला शॉट आपको अच्छे से पेपर्स डाउनलोड करके जमा करना है। पहले के जमाने में लोग बेचारे लाइब्रेरी जाके मैनुअल जर्नल्स का कॉपी उठा उठा के फोटो कॉपी करते थे। फॉर्चुनेटली आज के डेट में एवरीथिंग इज आर्काइव्ड ऑनलाइन। एल्सेवियर, स्प्रिंगर, सेज, इन सब के बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं। सो अभी अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे आप पेपर्स जुगाड़ कर सकते हो, और इट्स वेरी इजी। सो मतलब इससे हमारा कम से कम 1 साल का सेविंग हो गया, बिकॉज अब हमको घर बैठे बैठे काम हो जाता है। सो आपको रिगरसली लिटरेचर पहले तो कलेक्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होता है, बिकॉज अगर आप पूरा पेपर तो पढ़ने में तो बहुत टाइम जाता है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट होता है 300 वर्ड का, वो पढ़ के आपको जज करना होगा कि मेरे काम का है कि नहीं, और उसको बेसिकली आप डाउनलोड करते जाओ, प्रॉपर टैगिंग करते जाओ ईयर और ऑथर नेम और इन सब के साथ में, फिर उसको क्लासिफाई भी कर सकते हो, और दैट्स व्हाई यू कैन स्टार्ट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज व्हाई टू कंडक्ट रिसर्च, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ द रिसर्च। आई थिंक मेरे पास टाइम कम बचा तो आई विल गो, ठीक है। सो इस स्लाइड पर आई विल सी वेयर आई नीड टू गो। सो व्हाई टू कंडक्ट रिसर्च, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ रिसर्च। तो इसके लिए आपको अच्छे से एम और ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम, सो फॉर एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसे हमारे एरिया का एम ये है कि डज फैक्टर प्रोडक्टिविटी प्ले अ रोल इन लीन इन्वेंट्री परफॉर्मेंस टू फाइनेंशियल। तो ये हमारा बेसिक टाइटल है, और ऑब्जेक्टिव ये है टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन link of performance factor productivity as a mediator or moderator between inventory performance and financial। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव और एम है रिसर्च का। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, एक लाइन में आपका एम आ जाना चाहिए, और कम से कम 2-3 लाइन में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वेरी पॉइंट वाइज, वेरी स्पेसिफिक, और उसमें कोई भी वेगनेस नहीं होना चाहिए कि इनके हवा में कुछ भी एक पैराग्राफ, वो नहीं चलेगा। बहुत स्पेसिफिक और टू द पॉइंट होना चाहिए। फिर वहां से आप हाइपोथेसिस में आते हो, विच इज एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। जैसे हमारा हाइपोथेसिस होगा, यस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज अ मीडिएटर बिटवीन फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी एंड, ये हमारा एग्जैक्ट हाइपोथेसिस होगा। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा सिंपल मॉडल है, कई बार मॉडल्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और एक ही ऑब्जेक्टिव का 3-4 हाइपोथेसिस बनता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। बट समहाउ हमारे रिसर्च में एक ही 2 ऑब्जेक्टिव हैं, सो इसीलिए बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं। फिर चौथा क्वेश्चन है हाउ टू कैरी आउट योर रिसर्च, हाउ टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन, वेयर फ्रॉम द टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीजें हैं, और यहाँ पे आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि होली ग्रेल है आपके रिसर्च का। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिगरस नहीं हो तो आपका पेपर कहीं नहीं जाने वाला, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी वो धनुर्विद्या की तरह है। आपको अगर तीर चलाना अच्छे से नहीं आता तो आप कहाँ लड़ोगे जा करके। So yeah, so there are so many research methodologies which are, some methodologies are particular to a particular area, अलग-अलग एरिया के हिसाब से अलग-अलग मेथोडोलॉजी होता है, बट दैट्स द होली ग्रेल, वो आपको अच्छे से सीखना होगा अगर आपको अच्छा रिसर्च करना है। सो इसके कुछ, सो बेसिकली मेरा जो इस प्रेजेंटेशन में फोकस है वो थोड़ा इंपेरिकल रिसर्च साइड में है। सो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस। जैसे मेरे ऑपरेशंस रिसर्च में हाइपोथेसिस और वेरिएबल नहीं होता, वहां पे सीधा सीधा मैथमेटिकल मॉडल होता है, उसका सॉल्यूशन होता है बस। बट यहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। सो लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर इज अ वेरिएबल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज अ वेरिएबल, फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज अ वेरिएबल। सो ये सब वेरिएबल हैं हमारे रिसर्च में। फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, डेटा कलेक्शन टेक्निक क्या है, आप क्या अकाउंटिंग बैलेंस शीट से सीधा सीधा सेकेंडरी डेटा उठाओगे, क्या आप जाके लोगों का सर्वे भरवाओगे, क्या आप एक्सपेरिमेंटेशन करोगे लोगों को बैठा करके। तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सैम्पलिंग कैसे करोगे आप। सो बेसिकली मेरी स्टूडेंट के साथ में जो मेरा काम कर रहा है, हमने यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा लिया है, अकाउंटिंग डेटा। कॉम्प्यूस्टैट डेटाबेस आता है यूनाइटेड स्टेट्स डेटा के लिए, और इंडियन फाइनेंशियल डेटा के लिए प्रोवेस डेटाबेस आता है। सो अगर इंडियन अकाउंटिंग डेटा पे काम करना है तो हम लोग प्रोवेस से डेटा डाउनलोड करते हैं। और सिंस हम लोगों ने सोचा कि आज तक सिंस इस एरिया में काम नहीं हुआ, तो लेट्स वर्क ऑन यूएस, बिकॉज हमारा टारगेट थोड़ा इंटरनेशनल ऑडियंस है, इंटरनेशनल जर्नल है, तो इंडियन डेटा पे कभी कभी दिक्कत होता है उसमें छापने में। इसलिए हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद यूएस डेटा, बिकॉज अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस में काम करना है तो
यूनाइटेड स्टेट्स हैज द मोस्ट एडवांस्ड स्टॉक मार्केट एंड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऑब्वियसली इंडिया यूरोप का कहीं का भी अकाउंटिंग सिस्टम और स्टॉक मार्केट है तो यूएस से ही इंस्पायर्ड है वो। तो आप अगर कोई नया मॉडल डेवलप कर रहे हो, कोई नया वेरिएबल टेस्ट कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद यूएस डेटा बिकॉज एज आई सेड इट्स द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट डेवलप्ड मार्केट। सो वहां का डेटा बहुत रिलायबल होता है। तो आप जो भी रिसर्च करोगे उसका अच्छा प्रूफ मिलेगा आपको यूएस डेटा पे। सो दैट्स वाज आवर थॉट बिहाइंड वर्किंग विद यूएस डेटा। सो ये है, इसीलिए हमने यूएस डेटा उठाया। सो ये था आइडिया। तो हमारा सैंपल है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का इन यूएस। तो हमने बेसिकली कंप्यूटर डेटा से मैन्युफैक्चरिंग सैंपल लिया बिकॉज हमारा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था। इस तरह करके अगर आप सर्वे भरवाने जाओगे तो आपको बेसिकली 300-400 लोगों का सैंपल निकालना पड़ेगा। जनरली इट शुड बी रैंडम सैंपल। उसके पीछे पूरा स्टैटिस्टिकल साइंस है कि रैंडमनेस कैसे लाते हैं सैंपल में। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे भरवाने के लिए यूनिवर्सिटी में है, वहीं जाके स्टूडेंट का भरवा लेते हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपल। इट मे नॉट गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ योर रिसर्च। सो वो नहीं करना चाहिए आइडियली। ऑल्दो कभी कभी टाइम नहीं होता, फंड्स नहीं होते तो हम लोग करवा लेते हैं, बट दैट्स नॉट द वे टू गो। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, Who will you collect and when? कौन आपका डेटा कलेक्ट करेगा? आजकल बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि आपसे पैसा लेके आपका डेटा कलेक्ट कर देते हैं। पर पार्टिसिपेंट 500 ले लेंगे या डेटा कंपाइल करके आपको दे देंगे। ये है। फिर आप खुद हायर करोगे रिसर्च एसोसिएट, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मैन पावर आप यूज करोगे क्या, टाइम क्या लगेगा आपको। हाउ विल यू मॉनिटर योर रिसर्च? सो उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्लान क्या है, कब आप सर्वे एडमिनिस्टर करोगे, कब आपका क्वेश्चनर मार्केट में जाएगा, कैसे होगा। सो वो पूरा आपको एक ऑपरेशनल प्लानिंग उसका करना पड़ेगा। व्हाट एंड हाउ मच रिसोर्सेज आर नीडेड, हु विल प्रोवाइड द रिसोर्सेज। सो आपका बजट कहाँ से आएगा, आपको यूनिवर्सिटी देगी कि आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करेगा, कोई आपको कोई जैसे डीएसटी ग्रांट मिला हुआ है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। सो 3 M's आर देयर, मैन, मटेरियल एंड मनी। सो बेसिकली फंड कलेक्शन एंड फंड रेजिंग आर द 2 मेन थिंग्स हियर। हु विल सबमिट, हाउ टू सबमिट एंड वेयर टू सबमिट। So इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं प्रपोजल प्रिपरेशन, प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। So usually in case of PhD students, it is your thesis advisory committee which approves your thesis, and of course everyone from the university is invited. That should be the case कि भाई हर एरिया से हर किसी को इन्विटेशन होना चाहिए, and the student should be able to defend his or her thesis in front of the entire academic community. That's what gives it the genuine response. Okay, now coming to the specific elements of research proposal. So various terminologies are used to mean a research proposal depending on why the research is carried out. So research outline बोल सकते हैं उसको, synopsis बोल सकते हैं, plan of research बोल सकते हैं, thesis plan बोल सकते हैं. So ये, but broadly what is this? This is basically a blueprint of future activities of a research project, some sort of preconceived framework for starting the activity. So it's like an initial plan. Obviously changes होगा लेकिन initial plan चाहिए फिर भी, and deals with ideas of researcher about what research he or she wants to do, what objectives and methodology he or she has to set, how much time and resources are required to complete it, and how the research findings are to be reported, and so on. So एक बहुत ही detailed और comprehensive plan होना चाहिए इसका. I think this part I can skip a bit. So coming to how to write a research proposal. So broadly ऐसा है कि a research proposal is intended to convince others that you have a worthwhile research project and that you have the competence and work plan to complete it. So आपको justify करना है community को कि भाई एक worthwhile research project है, it is of use to the world, इससे ये theoretical development होगा या industry को फायदा होगा, आपको research methodology का ये plan है. जरूरी नहीं है कि आपको आता हो, but आपके पास एक proper learning और implementation plan होना चाहिए, and how you are going to achieve that. And generally a research proposal should contain all the key elements involved, इसके बारे में बात करेंगे next slide में, in the research process, and include sufficient information for the readers to evaluate the proposed study. So basically जब आप अपना thesis proposal या project proposal कहीं present कर रहे हो, तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि exactly क्या कर रहे हो आप. So it should be very lucid, very explanatory, and they should be able to appreciate what you're doing. So it's almost like selling yourself. So thesis proposal आपका पहला sales pitch है. So basically every doctoral student or professor is almost a salesman whenever he does a new research.
सो आपको अपना प्रपोजल भेजना पड़ता है किसी भी एजेंसी के सामने। सो ये है, सो रिगार्डलेस ऑफ योर रिसर्च एरिया एंड मेथोडोलॉजी, all research proposals must address the following questions: what you plan to accomplish, why you want to do it, and how you are going to. So it's repeating again and again because that's what it is actually. So ये है organization of your research report. So there should be introductory section. अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने का फायदा नहीं है, मैं I think this is self explanatory because everyone knows कि क्या मतलब है इसका। थोड़ा थोड़ा आएगा बाद में, but हाँ I will go bit fast. टाइटल पेज होना चाहिए जहाँ पे आपका टाइटल होना चाहिए, ऑथर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपके कोलैबोरेटर्स का नाम होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए लिटिल बिट। सो जो भी आपका रिक्वायरमेंट आपके यूनिवर्सिटी का उस पे हिसाब से है। यू कैन हैव अ टेबल ऑफ कंटेंट कि आपका इंट्रोडक्शन है, मेथोडोलॉजी है, सबका एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। यू मे हैव अ लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स फॉर इजी रेफरेंस ऑफ द रीडर। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च रिपोर्ट। इसको खत्म करके मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में भी बात करूंगा। रिसर्च रिपोर्ट में आपका ऐसे स्टार्ट करना, आपको पहले टाइटल होना चाहिए बोल्ड लेटर्स में, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ फिगर होना चाहिए, लिस्ट ऑफ टेबल होना चाहिए, ये 4 चीज होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस भी होना चाहिए, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है कि बार बार आप एब्रिविएशंस यूज करते हो और सामने वाले को बार बार पलट के देखना पड़ सकता है, तो आप एक जगह अपना 2 पेज में लिख के सारा एब्रिविएशन डाल दो। फिर यू स्टार्ट विद द मेन बॉडी, यहाँ पे प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए, पर्पस ऑफ द स्टडी विच इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पे कि आप मोटिवेट करोगे अपना प्रॉब्लम की भाई, जैसे कि हमारे केस में हम बताते हैं कि भाई जापानीज लोग ने लीन मूवमेंट स्टार्ट किया, सो 1960s के पहले नो वन गिव अ शिट अबाउट इन्वेंट्री। सो अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज दुनिया भर का इन्वेंट्री रखते थे अपना काम करें, उनको लगता था इन्वेंट्री है मतलब काम हो रहा है, तो दुनिया भर का इन्वेंट्री रखते थे। इन्वेंट्री रखने से 2 नुकसान होता था, एक तो होता था कि पैसा ब्लॉक्ड है आपका, दूसरा नुकसान होता था कि पूरा फैक्ट्री सामान से भरा होता था, उससे चलने में दिक्कत होता था, क्वालिटी डिफेक्ट छिप जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपका एक पार्ट गड़बड़ है तो उसके पीछे 100 पार्ट का इन्वेंट्री रखा हुआ है, तो बहुत इश्यूज आता था। तो 1960s में जापानीज क्वालिटी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और टोयोटा कंपनी इसका पायोनियर माना जाता है। सो उन लोगों ने बोला कि भाई बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखना बहुत वेस्ट है, उससे बहुत नुकसान होता है, उससे क्वालिटी इश्यूज आते हैं, उससे पैसा ब्लॉक्ड होता है, रिसोर्स वेस्ट होता है। सो एक्सेस इन्वेंट्री को उन लोगों ने बहुत वेहमली टारगेट किया और टोयोटा कंपनी ने दिखा दिया कि आधे से भी कम इन्वेंट्री में मैं सेम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, हायर क्वालिटी का कर सकता हूँ, कम दाम में कर सकता हूँ। तो 1980s 70s 80s में रिवॉल्यूशन आया क्वालिटी मैनेजमेंट का, और वहां से एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो अभी आप कोई भी फैक्ट्री जाओगे दुनिया भर में, कोई भी प्रोफेशनल फैक्ट्री, तो आप देखोगे बहुत कम इन्वेंट्री दिखेगा आपको। वही बनिस्पत आप किसी पुराने जमाने का फैक्ट्री में तो आप कैसे जाओगे, उसके लिए तो टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। बट हाँ, आई मीन यू कैन रीड इन बुक्स कि पहले बहुत इन्वेंट्री होता था, हर जगह पड़ा हुआ है, स्टील प्लेट पड़ा हुआ है एक गोदाम में भर के, इन्वेंट्री पार्ट रखे हुए मशीन के बगल में भतेरे, तो बहुत नुकसान होता था उससे। तो जापानीज लोगों ने ये चीज प्रूफ किया दुनिया को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नुकसान होता है। सो यू शुड कैरी ओनली दैट मच। सो अगर आपको 100 लीटर तेल बेचना है तो 300-400 लीटर रखो ना भाई, आपको 10,000 लीटर क्यों रखने का अपने टैंक में। सो वो बोला था, उससे आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या रिटेल में तो सिर्फ पैसा का प्रॉब्लम है, बट मैन्युफैक्चरिंग में और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इस तरह लिख के हम लोग अपना प्रॉब्लम मोटिवेट करते हैं कि भाई ये दुनिया में फोकस था, इस तरह हमारा रिसर्च प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज जस्ट रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे आपका एकदम जीरो डाउन हो जाता है कि आपका एग्जैक्ट रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम से आते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, वहां से आते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। एग्जैक्ट हाइपोथेसिस की H1, आई थिंक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अगर आपको है तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हाइपोथेसिस रखा जाता है कि भाई A इम्पैक्ट्स B, उसके ऊपर में रिगरस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है और उसको प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है। तो ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आपको एग्जैक्ट हाइपोथेसिस बिल्ड करना पड़ता है। फिर आपको, हाँ, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है इसका, यू हैव टू डिफाइन द एलिमेंट्स वेरी क्लियरली। ऐसा कुछ भी आप मत लिखो अपने थीसिस में जो आपने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया हो। आप ये मान के चलो कि आपका जो थीसिस का प्रपोजल पढ़ेगा वो आदमी को कुछ नहीं आता है मेरे एरिया के बारे में, ही इज अ डम गाय।
और आप एक एक चीज एक्सप्लेन करो। कोई भी ऐसा टर्म मत लूजली फेंको जो कि आप मान के चलो कि लोगों को आता होगा, ऐसा मत करो आप। every definition you have to, every term you have to define very clearly in your thesis starting of the introduction itself. So ये and brief overview. So जैसे ही आप अपना motivation research question खत्म करो, you have to give a brief overview कि भाई इस रिपोर्ट में मैंने लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट किया है, उसके बाद फिर मैंने रिसर्च स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद हाइपोथेसिस डिफाइन किया है, उसका मेथोडोलॉजी बताई है। सो ये आपको अच्छे से ब्रीफ ओवरव्यू देना पड़ेगा। इसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट हमने अभी अपना एक ऑप्टिमाइजेशन का पेपर जमा किया था यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च में। ये एक एरिया का, हमारे एरिया का टॉप जर्नल है, हम लोग काफी होपफुल थे, बट हमने लिटरेचर रिव्यू थोड़ा घटिया तरीके से लिखा था और हमारा पेपर इसी बात पर रिजेक्ट हो गया। दोनों रिव्यूअर ने एग्जैक्टली यही पिन पॉइंट किया कि आपका लिटरेचर रिव्यू पढ़ के हमको समझ नहीं आ रहा कि आपके पेपर में गैप क्या है। हमने बहुत काम किया उस पर, दुनिया भर का डेटा कलेक्ट किया रियल प्रॉब्लम से, अच्छा प्रॉब्लम था, इमर्जिंग मार्केट का प्रॉब्लम था, रियल डेटा था, हमने उसके ऊपर में बहुत मैथमेटिकल मॉडलिंग के बहुत काम किया, लेकिन पेपर सिर्फ इसी बात पर उड़ा दिया गया कि आपका लिटरेचर रिव्यू से हमको समझ नहीं आ रहा कि आपके काम में गैप क्या है और आपने क्या गैप फिल किया है। दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एक्चुअली फॉर अस। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है भाई साहब, और आपको करना ही है वो। अगर आप वो अच्छे से नहीं करोगे तो आपका पेपर लोग जान नहीं पाएंगे कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है, तो बहुत जरूरी है। सो थ्योरी आपको, दूसरा हेल्प ये है लिटरेचर के कि आपको थ्योरी बिल्ड करने में हेल्प करता है। थ्योरी क्या है बेसिकली, तो हम जब बोल रहे हैं कि लिटरेचर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये एक थ्योरी है। ये थ्योरी सालों के रिसर्च से डेवलप हुआ है। सो थ्योरी कैन बी समथिंग व्हिच हैज बीन डेवलप्ड ओवर द इयर्स, और इट कैन बी समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम कॉमन सेंस। जैसे हमको पता है कि ज्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे मेरी तरह, ये थ्योरी है, कॉमन सेंस की बात है। सो थ्योरी कैन बी वेरी कॉमन सेंसिकल, some very common sense statement which comes from general knowledge of your area, or something which has developed from your theory. So दोनों तरीके से थ्योरी डेवलप होता है। स्टडीज डायरेक्टली रिलेटेड, तो आपको डायरेक्टली रिलेटेड स्टडी का सर्वे देना पड़ेगा, उनको समझाना होगा उन लोगों ने क्या किया था और उन लोगों ने क्या नहीं किया था, आपको बाद में बताना पड़ेगा। सो जनरली 1-1.5 पेज में लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, और लास्ट में एक पैराग्राफ में बताना होता है कि भाई इन लोगों ने ये काम किया, बट ये काम नहीं किया या ठीक से नहीं किया और मैं ये कर रहा हूँ। सो ये इवेंचुअली दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू एंड योर लिटरेचर रिव्यू। नाउ कुछ लोगों को, जो लोग बेचारे, जो लोग इतना उनको लग रहा होगा शायद मैं बहुत ज्यादा मतलब बातें कर रहा हूँ, बट ये सच है। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो अच्छे जर्नल्स नहीं लेते आपका काम। फिर आता है आपका मेन बॉडी ऑफ द रिसर्च, प्रोसीड्योर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सैंपल, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। सो आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया, मैथमेटिकल मॉडल क्या था आपका, आपने कहाँ से डेटा उठाया, क्या डेटा उठाया, आपके रिस्पोंडेंट्स का एज क्या था, डेमोग्राफिक्स क्या थी, आपके डेटा का सैंपल आपने कैसे कलेक्ट किया, मतलब फुल डिटेल। और वो आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू से ही, बिकॉज आप जो भी पेपर पढ़ोगे वो लोग बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सॉरी वो लोग बताते हैं उन्होंने क्या किया, तो उन्हीं के हिसाब से आप देखो, आप अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे अपने एरिया के अच्छे पेपर पढ़ोगे वो लोग बताते हैं कि कैसे आपको रिसर्च करना है क्या। सो दैट्स अ बिग हेल्प एक्चुअली, दैट्स आल्सो अनदर यूज ऑफ रीडिंग गुड पेपर्स। फिर तो ये आपका मेन बॉडी हो गया। अभी आ गया आपका फाइंडिंग्स। तो एक बार आप डेटा एनालिसिस कर लो, टेबल एबल बना लो, फिगर बना लो, हाइपोथेसिस प्रूव डिस्प्रूव कर लो, फिर आपका वो मेन पार्ट खत्म। अब आते हो फाइंडिंग्स पे। सो फाइंडिंग्स में आप बताओगे कि आपके स्टडी से मिला क्या आपको। से हमारे स्टडी से ये मिलेगा कि हाँ भाई, फैक्टर प्रोडक्टिविटी का रोल है इन्वेंट्री और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बीच में, ये एज अ मीडिएटर काम करता है। सो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस से फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और फैक्टर प्रोडक्टिविटी से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो ये हमारा ओवरऑल फाइंडिंग होगा। सो कंपनी शुड फोकस ऑन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद इन्वेंट्री टर्नओवर। सो ये हमारा ओवरऑल फाइंडिंग होगा। इसके ऊपर में पहले डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का रिजल्ट लिखते हैं, फिर उसका इम्प्लीकेशन लिखते हैं प्लेन इंग्लिश में। सो अगर आपका रिसर्च पेपर कोई ऐसा आदमी पढ़ा जिसको आपके एरिया का कोई नॉलेज ही नहीं, तो आपका सीधा फाइंडिंग पे जंप मार देगा और पढ़ लेगा कि हाँ भाई आपने क्या बताया है ओवरऑल। ये खत्म। अब आप समरी पे कूद जाओगे। अब आप बताओगे कि आपका ब्रीफ समरी क्या था रिसर्च क्वेश्चन का, आपने क्या मेथड लगाया, आपके रिजल्ट्स क्या आए।
और आपके रिसर्च का इम्प्लीकेशन क्या है रियल लाइफ पे, और आपके, हाँ फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिमिटेशंस क्या हैं। ऑब्वियसली अगर आप सेकेंडरी डेटा पे काम कर रहे हो तो यू आर बाउंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। आपके पास में वही फाइनेंशियल डेटा, आप हर चीज उससे कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप सर्वे भरवा रहे हो तो ऑल्दो आपके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम है बहुत ज्यादा, आप रियल डेटा से डील कर रहे हो, रियली लोगों से बात कर रहे हो, आपके पास कोई, लेकिन सर्वे डेटा का प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों के परसेप्शन पे बेस्ड है, दैट मे नॉट बी ट्रू। सो हर एक एरिया का मेथोडोलॉजी का लिमिटेशन होता है। और कई बार मैंने देखा है कि कई बार रिसर्च प्रपोजल में कुछ महानुभाव आके बैठ जाते हैं, उनको उस एरिया का कुछ पता नहीं होता और बेचारे की लगा देते हैं स्टूडेंट की। अब भाई हर मेथोडोलॉजी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है ना। आप सर्वे भरवा लो, इंपेरिकल स्टडी करो, तो ये महाशय क्या करते हैं कि आके प्रपोजल में बैठते हैं और आकर के एकदम रिप अपार्ट कर देते हैं, स्टूडेंट को बेचारे को नर्वस कर देते हैं और हड्डियां उड़ा देते हैं। सो ये भी अच्छा नहीं है। सो एज अ ऑडियंस ऑल्सो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझो कि उस एरिया का लिमिटेशन है, हर चीज नहीं कर सकता तुम इस रिसर्च में। सो अगर आपको नहीं भी उस टाइप के लोग, आपकी किस्मत अच्छी, ऐसे लोग आपके रिसर्च में नहीं बैठे हैं, तो भी आपको समझाना होगा कि आपके एरिया में क्या, आपके प्रॉब्लम में क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड सो ऑन, और इवेंचुअली रेफरेंस एंड अपेंडिक्स। तो ये आपका अभी ये सब एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एरिया विच आई थिंक आई कैन स्किप, ये आप पढ़ लेना, मैं पीपीटी दे दूंगा। I'll jump into the most important part of this overall and this thing. So let me directly go into. So इस presentation में, as I said, कि बहुत सारे presentations को compile करके मैंने बनाया है, so you can have a look, especially those who are going for a new this thing. तो इसमें अच्छे से self explanatory है, आप समझ जाओगे। Okay. हाँ, दो चीज मैं बोलना चाहूंगा ब्रीफली, एक है बजट। तो जनरली पीएचडी थीसिस में बजट का नहीं बताना पड़ता जनरली, आई डोंट नो आपके यूनिवर्सिटी में क्या, बट हमारे यहाँ पीएचडी थीसिस में बजट का पंगा नहीं रहता। बट हाँ, अगर आपका फंडेड प्रोजेक्ट है, आप अगर किसी ग्रांट के लिए अप्लाई करो तो आपको बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा। सो उसका खुद के लिए फायदा ये है कि आपको एक प्लान मिल जाता है कहाँ कितना खर्च होगा, तो उस हिसाब से बजट एलोकेट करते हो। आपको कितनी सैलरी देनी है एसोसिएट्स को, आपको कितना ट्रैवलिंग में खर्च होगा, आपका डेटा का क्या प्राइस है, तो ये सब आपको अच्छे से एनालाइज करने का मौका मिलता है इसमें। और आप इस तरह से अपने ग्रांट देने वालों को भी कन्विंस करते हो कि ठीक है भाई, मेरा बजट जो मैं मांग रहा हूँ दैट इज जेन्युइन, सो मैं ओवर स्पेंड नहीं करूंगा, और आपको भी एक तरह का गाइडलाइन मिलता। दूसरा है एग्जैक्ट आउट, इस पे बात आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, क्या आउटकम है आपके पेपर का। ओके, नहीं, आई थिंक यहाँ पे दो चीजें हैं। आपका रिसर्च का दो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक है पब्लिकेशन इन टॉप जर्नल, और दूसरा, और ठीक है टॉप जर्नल में मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट होता, कोई बात नहीं, टॉप जर्नल में नहीं छपा, आप दूसरे में देखो। आपका नहीं छपा तो एटलीस्ट स्टिक टू अ पीयर रिव्यूड पेपर विच इज मैनेज्ड बाय अ गुड सोसाइटी। नेवर फॉल प्रे टू अ प्रेडेटरी जर्नल, उससे आपका सीवी खराब होता है, और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उससे नहीं बढ़ती, और आपको जॉब भी नहीं मिलेगा उस पे। सो बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ जर्नल्स व्हिच टेक मनी एंड पब्लिश, और नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल, जैसे जैसे होता रहता है, आप रिव्यू कुछ ना कुछ देता ही एडिटर रिव्यूअर, कुछ ना कुछ काम करो उस पे, और वर्क करते करते यू कीप ऑन ट्राइंग। साल 2 साल लग जाता है छपने में, बट इट्स वर्थ इट इवन देन। जब भी आपका पेपर आएगा गूगल स्कॉलर पे, इट विल गिव यू सो मच ऑफ हैप्पीनेस यू कांट इमेजिन, सो वो आप करो। सो या तो आपका पेपर पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव हो, या पेटेंट होगा। पेटेंट जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में ज्यादा एप्लीकेबल होता है, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज में, कॉमर्स में उतना नहीं होता है, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में कुछ नया पेटेंट लाना इतना आसान नहीं होता, बट हाँ दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो ये है। दूसरा क्या है कि आप सीधा प्रपोजल एक बार में लिख के मत दो, उसको रिवाइज एंड एडिट करते रहो, अपने गाइड को दिखाओ, अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को दिखाओ, अपने फैमिली को बताओ, और फॉर्मेटिंग अच्छे से करो उसका। मतलब टाइम्स न्यू रोमन इज द मोस्ट स्टैंडर्ड, 11 फॉन्ट, तो बेसिकली अच्छा वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करो तो अच्छा, लेटेक्स यूज करो तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली सोशल साइंसेज में लेटेक्स उतना यूज नहीं होता। सो फोकस टू गुड फॉर्मेटिंग प्रैक्टिस। कई बार स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज के, अच्छे से लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करो, बहुत स्टूपिड लगता है थीसिस में अगर आप रिसर्च कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ कई लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, उनका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड नहीं होता, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे आईएम सिस्टम में भी कई लोग हैं जिनका इंग्लिश पे कमांड नहीं है,
आजकल बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, grammarly.com एक वेबसाइट है, फ्री सर्विस है। ग्रामरली आप इंस्टॉल कर लो अपने वर्ड डॉक पे, ग्रामरली आपका सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधार देगा। बिकॉज जब मैं कोई थीसिस या पेपर पढ़ता हूँ एज अ रिव्यूअर और एज अ एक्सटर्नल एग्जामिनर, और उसका अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो माई गेट रियली पिस्ड ऑफ। मतलब बंदा रिसर्च क्या ही करेगा, इसलिए तो ग्रामर का भी ध्यान नहीं रखा। तो आप grammarly.com पे जाओ और मेक श्योर कि इज, कॉमा, एंड, द, फुल स्टॉप ये सब अच्छे से हो। आपका इंग्लिश बहुत हाई फाई नहीं होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं एकदम सिंपल इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम सिंपल इंग्लिश में लिखो, बट मेक श्योर की। और आजकल बहुत सारे ऑटोमेटिक टूल्स हैं, grammarly.com पे जाओ, GRAMMARLY, आई थिंक देख लेना स्पेलिंग, आई थिंक वो ग्रामरली डालोगे तो आ जाएगा गूगल में। अब ग्रामरली इंस्टॉल कर लो, फ्री सर्विस है, आपका पूरे डॉक्यूमेंट का एक एक ग्रामर ऑटोमेटिकली सुधार देगा। सो दैट कीप दैट इन माइंड एंड डोंट मेक इट टू लॉन्ग, एंड या इट शुड बी वेरी कंसाइज एंड वेरी फोकस्ड। ठीक है, तो एक मैं बात करूंगा आपसे। See, I mean, there are certain rules related to referencing, कैसे आपको फॉर्मेटिंग करना है, वो आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होता है, जर्नल स्पेसिफिक होता है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज वो आपके जर्नल टू जर्नल, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होता है, वो आप देख लेना अपना। बट जो भी रूल हो, फॉलो देम वेरी स्ट्रिक्टली, बिकॉज रूल्स नहीं फॉलो करने से भी कई बार लोग पेपर रिजेक्ट मार देते हैं, उनको लगता है कि द वर्क इज नॉट सीरियस एनफ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। सो ऐसा ना हो कि आपने 3 साल लगाया, मेहनत किया, और किसी माइनर रीजन के चलते आपका थीसिस का रिजेक्शन हो गया या रिसर्च रिजेक्ट हो गया। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इससे नौकरियां जाती हैं और वेरी रिस्की टू डू, वेरी अनएथिकल टू डू। सो कोई भी पेपर बुक आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू रेफर देम इमीडिएटली आफ्टर मेंशनिंग, नॉट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, राइट देयर कि भाई संजय एटॉल ने ये बोला था, ये थ्योरी जेकब्स एटॉल ने दिया था, उसको लास्ट में बिब्लियोग्राफी डालो आप। सो ईच एंड एवरी सोर्स हैज टू बी साइटेड, और साइट करने के बाद भी आप वर्बैटिम कभी भी कहीं से कॉपी पेस्ट मत करो। अगर आप वर्बैटिम मतलब एकदम सेम टू सेम के एग्जैक्टली जैसा जेकब्स एटॉल वैसा ही उठा के छाप दिया, ऐसा मत करो, कभी मत करो। उसका नाम लिखने के बाद भी ऐसा मत करो आप, या तो उसको अपने लैंग्वेज में ट्विस्ट कर दो, या तो अगर आप वर्बैटिम कहीं से कुछ छाप रहे हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में देख के लिखना होगा आपको कि भाई जेकब्स एंड अदर्स ने ऐसा बोला, ये डेफिनेशन दिया। तो अगर आप एज इट इज कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मारो तो आपको उसको इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा, नहीं तो आप उसको अपने लैंग्वेज में ट्विस्ट करके लिखो। सो बी वेयर ऑफ प्लेगरिज्म, बहुत टेम्पटिंग होता है कई बार, लेकिन डोंट डू इट, इज वेरी रिस्की। अगर आपसे किसी ने कंप्लेन कर दिया तो आपका पीएचडी डिग्री जा सकता है, आपकी जॉब जा सकती है। मैं अहमदाबाद में एक बंदे का गया पिछले साल। इट्स वेरी रिस्की थिंग टू डू, सो बी वेयर ऑफ दिस। खास करके अगर आप प्रोफेसर हो और आपके अंदर में बहुत सारे रिसर्च एसोसिएट और स्टूडेंट काम करते हैं, डोंट लेट देम अ सिंगल पेपर टू बी सबमिटेड विदाउट योर कंसेंट। कंसेंट का मतलब आप भले कई बार उस पर काम नहीं करते हो, सिंपली गाइडेंस देते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप उस पेपर को जरूर चेक करो प्लेगरिज्म के लिए। कैसे चेक करोगे आप? ग्रामरली पे ही एक बार दौड़ा लो, बता देता है। और दूसरा सॉफ्टवेयर है टर्निटिन, आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया है फ्री में, उसमें भी आप जस्ट एक बार अपने वर्ड डॉक को अपलोड कर दो, प्लेगरिज्म डिटेक्ट करके बता सकता है। 20-30% से ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं। अब ऑब्वियसली कुछ तो सिमिलैरिटी होगा ही, ऐसा इम्पॉसिबल है पेपर लिखना कि एकदम ही 100% अलग हो, बट हाँ 20-30% इज ओके। अगर 50-60% है तो इट्स वेरी रिस्की। 80-90% में तो आई वुड रिकमेंड रिजेक्शन। अगर मेरे पास कोई थीसिस आती है और उसका 80-90% प्लेगरिज्ड है तो आई विल इमीडिएटली से कि this thesis should be rejected. It's a crime. Plagiarism is an academic crime. It should not be done whatsoever. So ये है। Okay. थोड़ा बहुत मैं प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहूंगा, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट 1 मिनट लेफ्ट। सो प्रेजेंटेशन में आप 2-3 बात का ध्यान रखो। आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए, आपको वो कहानी की तरह अपना थीसिस सुनाना है, प्रपोजल। सो मेक योर रिसर्च। सो कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। सो या 1 और 3 मेन पॉइंट्स रखना आपको हर एक स्लाइड में, उसमें पूरा पैराग्राफ मत लिख लो। ये प्रॉब्लम मैं देखा हूँ, जैसे कई बार मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, लोग कई बार लोकल यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता। वो क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ उठा करके
अपने रिपोर्ट से प्रेजेंटेशन में चिपका देते हैं। अब अगर आप पूरा पूरा आप देखो, यहाँ पे खाली 5 लाइन लिखा हुआ है, 5-6 लाइन, तो आप भी पढ़ सकते हो उसको, मैं भी पढ़ सकता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ सुनाऊंगा तो यू कैन रिलेट इट टू दिस। अगर इसी के ऊपर मैं 5-20 लाइन लिख देता तो आप कुछ नहीं पढ़ पाते, मैं भी कुछ नहीं पढ़ पाता। अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट पीपीटी में डाल दोगे तो वो किसी के काम का नहीं होगा, ना आप पढ़ पाओगे ना ऑडियंस पढ़ पाएगा, और दैट विल बी mere distraction. So there are certain rules: not more than 7 lines and not more than 7 words in a line. तो प्योर पीपीटी शुड बी कंसाइज। वो लाइन आपका एज अ रेफरेंस काम करता है, अब उसको पढ़ के आप अपना स्टोरी टेलिंग करो, आप कि आपने ये मेथोडोलॉजी यूज किया, आपको ये प्रॉब्लम्स आई, आपका ये डेटा था। सो यूज दिस पीपीटी एज अ गाइडलाइन, नॉट एज अ एंकर टू रीड आउट के पढ़े जा रहे हैं उससे, वो कभी मत करो आप। एंड कीप टाइम शॉर्ट। आपको जनरली टाइम दिया रहता है, 1 घंटे का टाइम है, आप 45 मिनट का दो। हालांकि हैविंग सेड दैट मैंने ही पूरा टाइम खा लिया, सॉरी फॉर दैट। सो ये सब है। सो एंड या, so there are so many things which you can go through in this slide. So I'll stop here. Thanks a lot, and I hope I was some use to you. And I'll share the PPT with Mr. Dheeraj, so he will share it with you. Thank you. I am ready for any questions whatsoever. Thank you so much, sir. Yeah, there is a sir, for the I hope that Mopia Ghosh William is asking to you that which app. I hope it's which app, if you can mention before submission. I hope it is for plagiarism. It's One only is Turnitin.com. Turnitin. yeah. Grammarly.com में भी plagiarism check होता है, और एक इंडियन MHRD ने भी रिलीज किया है, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने भी एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया है। आई थिंक इट्स आल्सो फॉर फ्री। सो हाँ, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो 2-3 टर्निटिन बहुत अच्छा है, ग्रामरली इज गुड इनफ, तो बता देगा आपको एग्जैक्टली कहाँ से प्लेगराइज्ड है, किसने किया है। तो एंड यूजुअली योर यूनिवर्सिटी इज सपोज टू हैव अ लाइसेंस, तो जनरली होता है। आई एम इंदौर के पास टर्निटिन का है, ग्रामरली का है, सो जनरली लाइसेंस होता है इसका। Okay. Thank you, sir. And there are no more questions from the participants. Shahid. Now, from my side, I would like to ask you a question. As you were talking about the grants for the proposal, so whether it is the faculty members that are only eligible for that grants, or even research scholar can take the proposals from their end as well? That's a good question. I think PhD students are also eligible for grants, but the options are limited. और frankly speaking, PhD में इतना टाइम भी नहीं होता कि आदमी इतना कुछ कर सके, but हाँ, there are options, but IIM में उतना नहीं है। Having said that, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ग्रांट नहीं है, प्रोफेसर्स के लिए है, बट हाँ, देयर आर एक्सटर्नल ग्रांट्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रांट है, फोर्ड फाउंडेशन का ग्रांट है। सो देयर आर इंटरनेशनल एंड नेशनल ग्रांट्स, बट हाँ, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप अच्छा खासा देता है। आई थिंक द स्टाइपेंड इटसेल्फ इज सम 35-40,000 रुपीज। लैपटॉप परचेज ग्रांट है, कॉन्फ्रेंस ग्रांट है, बट हाँ, so I think that's the grant which is pretty generous actually. So other than that, I don't think there are many grants here. Okay, I was just asking for the information that is there any means the like projects grant. So as you said, means there are not IIMs are not providing it. I mean, maybe I'm not aware of, but I have not heard of any grants specifically for the students. Okay. For professors, we have that 1 lakh rupees seed money project, so वो हमको मिलता है। Okay. स्टूडेंट का स्टाइपेंड है, तो और तो यहाँ कुछ नहीं देते उसके अलावा। बट आई एम श्योर देयर आर मेनी ग्रांट्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, MHRD ग्रांट्स, तो वो सब होता होगा, आई होप। Okay. Thank you so much, sir, for this wonderful session, and I hope this session was really informative for all the participants, and they have really gained a lot, not only in the operations but also in the various other fields. So thank you so much, sir, for this wonderful session. And now for the vote of thanks, I would like to invite Dr. Dhiren Pandey, sir, to kindly present vote of thanks to the sir. Over to you, sir. Thank you, Soumya. Respected chairperson of the
Faculty Development Program, Sir G.N. Sharma sir, Head and Dean Faculty of Commerce, Magadha University, Bodh our eminent resource person, Dr. Saurabh Chandra sir, Associate Professor, IIM Indore, the organizing committee members present, our organizing secretary, Mrs. Neeta Kumari Madam, Assistant Coordinator, Soumya Gupta, faculty members, research scholars, and the PhD holders who have registered for this program. Very good afternoon to all of you. I would like to thank Dr. Saurabh Chandra sir for his informative session. आपने बहुत ही ईमानदारी से एक्सेप्ट किया कि आपको भी रिसर्च प्रपोजल के बारे में 10 साल पहले कोई जानकारी नहीं थी। रिसर्च का ही जानकारी, तो प्रपोजल बहुत दूर का बात है। तो कंप्लीटली अननोन एरिया फॉर मी एक्चुअली। बिल्कुल सर, ये दिक्कत पहले थी और ये दिक्कत अभी के रिसर्च स्कॉलर्स को ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ये सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाने का जो है बेड़ा उठाया हुआ है। अब जैसे रिसोर्स पर्सन जो हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना कीमती समय देते हैं फैकल्टी मेंबर्स को एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर्स। एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया था कि हमारे लिए क्या उपयोग है इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। हमने तो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सब ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। तो उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका रिसर्च पूरा हो गया, और आपका रिसर्च पूरा होने का मतलब यह नहीं है कि आपका जो मार्ग है इस एकेडमिक फील्ड में, जैसा कि हिमांशु सर ने भी कहा कि केवल टीचिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए आपका कर्तव्य। आपको आज के डेट में तो रिसर्च इज मोर इम्पोर्टेंट देन टीचिंग एक्चुअली। और आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उनको गाइड करें, और ये सब जो जानकारी आप इस एफटीपी में ग्रहण करेंगे तो इट विल ट्रूली हेल्प यू गाइड योर रिसर्च स्कॉलर्स, वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। और जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इनॉग्रल सेशन में भी हम लोगों ने सुना, जो भी डिग्निटरीज थे उनके द्वारा भी और सौरभ सर द्वारा भी, कि एथिक्स इन पब्लिकेशन प्लेगरिज्म, इससे बहुत ज़रूरी है आप लोगों को अवेयर होना। सर के पास हालांकि ज़्यादा समय नहीं था, लेकिन फिर भी सर ने प्लेगरिज्म के पॉइंट्स बताए। सर ने रिसर्च, एक है प्लेगरिज्म, वो तो बहुत डेंजरस है। दूसरा है प्रेडेटरी जर्नल्स। ये दोनों से, प्रेडेटरी जर्नल डेंजरस नहीं है लेकिन अच्छा नहीं है, मतलब वो नॉट अ गुड अच्छा नहीं है, वो रिसर्च को मोटिवेट नहीं करता है, वो आपके अंदर कभी भी कोई ऊर्जा पैदा नहीं होने देगा कि आप एक अच्छे रिसर्च के लिए मोटिवेट हो पाए। इसलिए प्रेडेटरी जर्नल से भी बचना चाहिए। सर आपने जो टॉपिक्स डील किए उसमें आपने बताया कि प्रपोजल जो है आपका कभी भी वेग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी स्पेसिफिक। नहीं तो आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने रिसर्च को आगे ले जाते हैं तो बीच में आपको भागना पड़ सकता है उस रिसर्च से। और अगर स्पेसिफिक टॉपिक को डील करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप निश्चय ही अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी अच्छे टर्म्स आपने यूज़ किए, जो कि हम लोग अमूमन शायरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, कातिलाना और दिलो जान, ये सब अच्छे शब्द थे आपके। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आपका लेक्चर सर। मेरा एक्सेंट में बिहारीपन कम आता है एक्चुअली। मेरे बहुत सारे कानपुर के दोस्त हैं तो मेरा यूपी वाला टच ज्यादा है। अच्छा, तो झारखंड से वाला बिलोंग एक्सेंट करते थोड़ा हैं चला राजपूत। गया। तो सर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिसर्च प्लान भी आपने बताया, पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, हाउ टू ऑर्गेनाइज द रिसर्च रिपोर्ट, ये काफ़ी चीज़ों की जानकारी आपने दी सर अपने सीमित समय में। और सबसे बहुमूल्य जो आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका मैं पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, ये पटना ब्रांच की तरफ से और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा सेशन कोऑर्डिनेटर सौम्या गुप्ता जी का, जो सुबह से ही
बहुत अच्छी तरीके से सेशंस कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और पार्टिसिपेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग केवल अटेंड ना करें। सर, जाहिर सी बात है कि सर ने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न उठने चाहिए। अगर समझ में नहीं आता तो भी प्रश्न उठना चाहिए, अगर समझ में आता तब तो और ज़्यादा प्रश्न उठना चाहिए। धीरेन्द्र जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरा एक मीटिंग है 3 बजे, तो मैं थोड़ा भागूंगा। सो बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद मुझे बिल्कुल मौका बिल्कुल। देने के लिए, ठीक है सर, और थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा आप लोगों से बात करके। सो धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं पार्टिसिपेंट से अभी जो कह रहा था कि आप लोग प्रश्न जरूर पूछा करिए। जो भी सेशन है, 1.5 घंटे का सेशन है, आप लोगों को समझ में आता है तो और ज़्यादा प्रश्न होना चाहिए। यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, दैट मीन्स यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द लेक्चर्स। कि मैंने भी सेशंस अटेंड किए हैं, और जब भी मुझे समझ में आता था तो और ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस आते थे हमारे दिमाग में, और नहीं समझ में आता है तो पूछना ही है। तो आगे वाले सेशंस में हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जो है कंसंट्रेट करेंगे और अपने क्वेरीज को रखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के सामने। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आप भी संयम के साथ जो है सेशन सुन रहे हैं। बाकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो अपना सामने से तो हम लोग दिख रहे हैं, जो लोग बैक ऑफिस से काम कर रहे हैं, जो नहीं दिख पा रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सेशन जो सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I request all the participants, they can, if they want, they can exit and join again on 3:25 p.m. so that we can start the next session on the research plan, which will be taken by the Dr. Chinmay Roy, Assistant Professor, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University. So I would request you to kindly please gather on time so that we can just start the session on time. Thank you so much, everyone.